So I welcome everybody today to our session. We are very fortunate to have with us CA Sachin Tulsian, and he will be speaking on the opportunities which we as CAs have with respect to government subsidies and incentives. So there was an interesting quote which I found on incentives. So an incentive is a bullet. It's a key. Often it may be a very tiny object, but with an astounding power to change a situation, right? So CA Tulsian will be guiding us and throwing some light on all the opportunities which we have. And to give a formal introduction, I would like to call upon our past convener, Manish Didheria. Thank you, madam, for giving this opportunity to introduce today's learned speaker on the apt topic where we are now as a chartered accountant diversifying our practices in various fields. So we have today with us CA Sachin Tulsian. He is a member of Institute from last 17 years and practicing in the field of incentives under various segments. He is a partner in ASAT and Associate Chartered Accountant firm, mainly practicing on MSME advisory, MSME subsidies, incentives, corporate finance, corporate advisory, capital market advisory, private equity, merger acquisition, due diligence, and Indian entry services, etc. He is a regular speaker at WRC and various study circles on the topic of MSME benefits to chartered accountants. And he's also a regular speaker at various industry forums, guiding them on the same subject matter. He's also socially associated with various professional organizations like RVG, Junjunu Pragati Sangh, all Maharashtra Mushroom Grow Association, Bharat Vikas Parishad, etc. With this short introduction, I welcome Sachin ji to today's August gathering. Please welcome them with your lot of applause. May I request CA Deepak Jevaria ji to come forward to give a token of love and affection to us. Sachin ji, the dice is yours. Presentation लगा रही Presentation screen sharing. Visible? Yeah. A very good morning to all of you. I think मौसम तो बॉम्बे के अंदर हिल स्टेशन जैसा हो रखा है और फिर संडे मॉर्निंग हम लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं घर के चाय पकौड़े छोड़कर. So heads off to you to come in such a large number.
बिल्कुल बिल्कुल। सो मनीष जी ने, कटारकर जी ने तैयारियां की हुई है, पर वो मिलेगा शायद इस सेशन के बाद में। तो उन्होंने बोल रखा है सब जगह रहेंगे अगले 2 घंटे, तो फिर नाश्ता चाय पकौड़े हमारे यहाँ पे भी व्यवस्था की गई है। ऑन अ लाइटर नोट, थैंक्स टू जेबी नगर स्टडी सर्कल, विजेता जी, मनीष भाई, कटारकर जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। So friends, we have taken a lot from this institute. हमारा alma mater है, so whenever we get such kind of opportunity, जब भी institute से, study circle से, I normally get a call to speak on the session. And with the folded hands, I always say, I always try to take out time. हमने शायद institute से बहुत कुछ लिया है, तो जहाँ पे भी मौका मिलता है शायद हम लोग अपने alma mater को कुछ वापस दे सके, कुछ share कर सके with our colleagues, with our professional brothers. So I always try to grab this opportunity. So it is my opportunity basically to come and speak with the members of JB Nagar Study Circle. साल भर पहले भी शायद नवंबर में ही, if I remember, अपना कोहिनूर के अंदर रखा था on MSMEs, and this is the second time I am interacting with the members of JB Nagar Study Circle. So without taking much of time, I think we should come to the topic जिसके लिए हम लोग सब इतना अच्छा मौसम छोड़ के आए हैं. So for the next 1.5 hours, I'll try my best to keep everyone awake to give insights of MSMEs. जो आज का टॉपिक है, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे why this MSME, जो हम लोग ये वर्ड पिछले 8-10 साल में तो बहुत सुना होगा, and we'll see the importance of how as a chartered accountant we can add value to our clients. और जब क्लाइंट को वैल्यू ऐड होगा तो हमारा वैल्यूएशन पक्का है. सो आई थिंक विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट 1.5 hours ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू MSME और इंसेंटिव सब्सिडीज के बारे में, wherein दिस कुड आल्सो बी एन एरिया ऑफ प्रैक्टिस फॉर वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जहां पे हम लोग क्लाइंट्स के लिए बेनिफिट करवा सकते हैं इफ वी आर अवेयर दीज काइंड ऑफ इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज आर अवेलेबल टू आवर MSME क्लाइंट्स. So we'll take it forward. मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश के अंदर अपन मिक्स करते हैं, सो दैट मैं भी बढ़िया से कनेक्ट कर पाऊंगा. सो थैंक्स. एक बार हम लोग आज का फ्लो समझ लेते हैं, हम लोग क्या क्या कवर करने वाले. फोकस वुड बी मेनली ऑन इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज फॉर MSMEs, जहां पे महाराष्ट्र इज समथिंग व्हिच आई विल ट्राई टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम. महाराष्ट्र की अपनी स्कीम है, बहुत ही अच्छी स्कीम है. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बाकी के स्टेट्स अभी कंपैरिजन में हाउ वी आर डूइंग, और यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स अपने MSME क्लाइंट्स को मिल सकते हैं. सो डेफिनेशन ऑफ MSME 1-2 मिनट हम लोग उस पर स्पेंड करेंगे, क्योंकि ये 15 साल से 16 साल से डेफिनेशन पुरानी चलती आ रही थी, जो कि 2020 में जाके चली. सो विल ट्राई टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस. सेकंड टॉपिक, वेरियस इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज फॉर MSMEs. प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI is something which came in 2020. कुछ टाइम हम लोग के पास में लास्ट में बचेगा, तो विल ट्राई टू स्पेंड सम टाइम. अदर अपॉर्चुनिटीज फॉर CAs in MSME practice, fundraising opportunities, GEM portal, TREDS, MSME समाधान और section 43BH. I think ये सब चीजें कवर होगी, but we'll still try to give 2 to 3 minutes on these slides if time permits. But our most focus for today's conversation would be on discussion would be on incentives and subsidies for MSMEs. कॉलर माइक भी मनीष जी, इज इट पॉसिबल? अगर कॉलर माइक है, शायद वॉइस बराबर आ रहा है. इज इट ठीक है? फिर कंटिन्यू कर सकते. ठीक है मनीष जी, परफेक्ट. मेरे को लगा वो वॉइस शायद नहीं आ रहा, बट आई थिंक इट इज परफेक्ट. या वॉइस इज, देन वी कैन कंटिन्यू. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग MSME के बारे में इतना सुनते हैं, समझते हैं, वी हैव हर्ड. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये MSME को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, व्हाई दिस गवर्नमेंट इज गिविंग और प्रीवियस गवर्नमेंट इज गिवन सो मच इंपॉर्टेंस टू MSME. थोड़ा सा हम लोग उसकी स्ट्रेंथ के बारे में समझते हैं, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टॉपिक्स ऑन सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स.
टोटल नंबर ऑफ MSMEs इन इंडिया आर अराउंड 6.5 करोड़। अब मैं आपको खाली लिंक करने के लिए एक दो फिगर्स देता हूं। जर्मनी या फिर फ्रांस जो कंट्रीज हैं, उनकी पॉपुलेशन इटसेल्फ इज 6 to 7 करोड़। तो वहां पे जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर MSMEs है। सो दैट इज समथिंग यू नो वी कैन कोरिलेट एंड वी कैन जज द पावर ऑफ MSMEs। जिसमें से टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड, सो 6.5 करोड़ रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड वॉट एवर इट इज, 4.5 करोड़ के आसपास के रजिस्टर्ड है, जिसमें मैक्सिमम इज 95% इज माइक्रो, 4.29 करोड़, स्मॉल 7 लाख है, और मीडियम तो उसके अंदर 67,000 ओनली MSMEs which are registered, but still figure is overall it is 4.5 करोड़ का रजिस्टर्ड। Now in terms of GDP, MSMEs are contributing 30% of the GDP of India। आज हम लोग 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का बात करते हैं, 300 लाख करोड़ अगर हम लोग INR में इसको कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर MSMEs are contributing 30% to the GDP। 90 लाख करोड़ of GDP is being contributed by MSME। अब मैं अगेन बीइंग CS, हम लोग थोड़ा सा कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट से उसको देखते हैं। रिलायंस का मार्केट कैप 16 लाख 17 लाख करोड़ है, तो 5 या 6 रिलायंस के जितने बड़े हैं, सो रिलायंस को हम लोग वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं अपने कंट्री के अंदर, उस साइज की हमारे यहाँ पे MSMEs हैं। सो 90 लाख करोड़ ऑफ द GDP is being contributed by MSME। in exports they are contributing 45% of the total exports of the country, और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 40% is being contributed by MSMEs। एक और आई थिंक लास्ट फिगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्ट्रेस करना चाहूंगा, और आई गिव वेटेज ऑन दिस। MSMEs are creating direct jobs of 15 crores into the country। 15 करोड़, 140 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर 15 करोड़ जॉब्स, ये 6.5 करोड़ का जो हम लोग ने ऊपर फिगर देखा है, एक MSME के पीछे दोनों का एम्प्लॉयमेंट एवरेज, कुछ के अंदर ज्यादा भी रहते हैं, पर हम लोग एवरेज भी पकड़े तो 2 का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे आर जनरेटिंग। अब ये तो हमने की डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात, एक MSME के पीछे हम लोग एक इनडायरेक्ट जॉब और उसका ऐड कर लेते हैं। मे बी उनको अकाउंटेंट की सर्विसेज की जरूरत पड़ता है, ट्रांसपोर्टर का जरूरत पड़ता है, या फिर फार्मर्स हु आर प्रोड्यूसिंग द क्रॉप विच इज बीइंग प्रोसेस्ड एज ए फूड प्रोसेसिंग, जो कि आपका MSME में आएगा। तो अगर उनके पीछे एक एक और इनडायरेक्ट जॉब आपने क्रिएट किया, तो दीज MSMEs आर क्रिएटिंग अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब ऑफ ऑलमोस्ट 30 करोड़ इनटू द कंट्री। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर कोई सेक्टर अगर कोई सेक्टर 30 करोड़ का जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस कैसे नहीं करेगी। सो दैट्स व्हाई आई से दैट प्रीवियस गवर्नमेंट वाज आल्सो, मतलब मैं आई एम नॉट बायस्ड टू एनी ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने भी अपना काम किया है, पर आई थिंक दिस गवर्नमेंट इज स्लाइटली प्रोएक्टिव। वो लोग डेटा क्रंचिंग के अंदर डेटा काफी एनालाइज करते हैं, तो उनको समझ में आया कि MSMEs को, जो कि 30-35 करोड़ की जनता के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट करता है, हाउ वी कैन लीव दीज स्ट्रेटा एज अनटच्ड, हम लोग उनको बेनिफिट कैसे ना दें। तभी आपने देखा होगा पिछले 10 साल के अंदर we have heard a lot about MSMEs। बहुत सारी स्कीम्स, दे हैव स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम्स तो ही हैं, उसके अलावा we have heard about this GeM portal, government e-marketplace, which has created a lot of jobs, lot of business for MSMEs। ट्रेड्स पोर्टल का आप बात कीजिए, जहां पे आप बिल डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं MSMEs के लिए, एंड ओवर मींस बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग ने अपने क्लाइंट्स के केसेस में भी देखा हुआ, दे आर टेकिंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्रेड्स पोर्टल। MSME समाधान, जहां पे MSMEs का अगर पैसा रिकवर नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, दे कैन गो टू दिस एपेलेट काइंड ऑफ, जैसे अपना इनकम टैक्स के अंदर एपेलेट ट्राइब्यूनल रहता है, उसी टाइप की दे हैव क्रिएटेड अ पैरेलल बॉडी वेयर यू कैन रिजॉल्व द केसेस ऑफ MSMEs, जहां पे हम लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी कैन add value, or there is a professional opportunity also in those kind of services। So these are the things which has been introduced by the government, current government in last 7 to 8 years। They have done a lot of reforms for MSMEs, और मेरे को लगता है गवर्नमेंट के लिए भी, जब उनको वोट बैंक जहां पे दिखाई देगा, दे विल सर्टेनली ट्राई टू गिव बेनिफिट। इट इज अ गिव एंड टेक काइंड ऑफ, यू नो, वो लोग हमसे बहुत ज्यादा समझदार हैं, तो जब उनको ये पता चलेगा कि 30-35 करोड़ का MSME सेक्टर है, हमारे लिए बहुत बड़ा वोट बैंक बन सकता है, दे विल सर्टेनली ट्राई, एंड इट इज फेयर आल्सो। जब उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो दे विल ट्राई टू गिव बेनिफिट टू MSMEs। नाउ फॉर वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
it has created a lot of opportunities. हम लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग भी if we look into as a CAs also प्रैक्टिस के अंदर आपको हमेशा रेशियो वैसा ही मिलेगा, 80% would be MSMEs practitioners, 20% would be large firms. हमारे क्लाइंट्स के भी केसेस में अगर आप अपने क्लाइंट लिस्ट पे उठा के देखेंगे तो 70 to 80% would be MSMEs, 15 से 20% हमारे लार्ज और मेगा क्लाइंट्स would be there. So everywhere the data is skewed like that only. और अगर हम लोग ने if we are aware that these are the benefits, incentives or subsidies or maybe other benefits are available to MSMEs, if we are aware, we can educate to our clients and in turn जब आप उनका benefit कुछ करा के देंगे, फायदा करा के देंगे, as a professional we are gonna charge the fees for our services and it is a win-win situation. So I always say that हम लोग बाकी भी practice करते हैं, income tax का हुआ, कोई GST में कर रहा होगा, कोई बाकी के areas में कर रहा होगा, पर along with that, this could also be an added as a additional service MSME wherein practice we can add and we can give value to our clients. So next कुछ अगले 1-1.5 घंटे में we'll try to understand what are the incentives, benefits are available. We can guide to our clients and can create a win-win situation for everyone. So friends, सबसे पहले हम लोग challenges देख लेते हैं MSMEs के साथ में broadly क्या challenges आए और what are the benefits which government has given और क्या उन्होंने schemes वगैरह create की हुई है, जिसमें से 2-3 schemes we'll try to cover in today's discussion. So MSMEs के साथ में challenges आते हैं. One is lack of enough finance in the absence of collateral security. I think हमारे जितनी भी MSME clients हैं, चाहे working capital हो या उनको एक कुछ 5 करोड़ 7 करोड़ का capex करना हो, machinery, plant and machinery के investment करना हो, collateral is something which is always a problem for which we must have faced with our clients. For this, there is a scheme called CGTMSE, Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises, wherein banks are providing collateral-free loans to MSMEs, जिसकी पहले लिमिट 2 करोड़ हुआ करती थी. I think a year back this limit has been increased to 5 crore rupees. और यहाँ पे working capital टर्म लोन दोनों के केसेस में so I would say थोड़ा सा स्लो हो सकता है, might be, but over a period of time मैंने लिखा है पिछले 8-10 साल में MSME CGTMSE लोन के भी disbursements में there has been a big uptick. और अगर आप के प्रोजेक्ट में दम है, if you can present properly to the manager, I think CGTMSE के अंदर काफी सारे लोन्स हो रहे हैं. It is just a matter of how we represent, how we convince to the bank manager. So these are the challenges, and for those challenges what schemes government is giving. Timely recovery of dues from the customers. Again MSMEs के साथ में timely recovery dues का वर्किंग कैपिटल साइकिल उनका सबसे लंबा होता है. लार्ज कॉर्पोरेट के साथ में उनको तो फंडिंग लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, पर जब प्रॉब्लम आती है वर्किंग कैपिटल की वो सबसे ज्यादा आती है MSMEs के साथ में. सो गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड MSME समाधान जो हम लोग ने बात किया. देयर इज अ MSEFC काउंसिल्स दे हैव क्रिएटेड इन ईच DICs डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जहां पे अगर किसी MSME का फंड्स हैज बीन स्टक आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया एज पर क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ ठीक है, पर उसने विद इन द ड्यू डेट ऑफ मे बी 15 days or 30 days he has not made the payment. So instead of going to the court process, you can go to these MSEFC councils, and friends let me tell you it is very effective. कोर्ट में केसेस 8-8 10-10 साल तक चलते रहते हैं, उसका रिजल्ट आते पता नहीं है, बट इन दीज MSC councils cases are being resolved without going into. After that you can you have the option also to go to the judicial part, but lot of cases are being resolved at this level also, and MSMEs are able to recover the dues. So हम लोग अगर अपने clients को इन सब areas के बारे में guide कर सकते हैं, या फिर in some areas we can as a professional also we can appear on behalf of them, and we can add as a service in our bouquet of services. Competition from large business and lack of skilled laborers. These are the again two big challenges for MSMEs. यहाँ पे there are various government incentive subsidies, जो कि आज का हमारा main topic है, we'll try to cover कि कैसे large corporate से compete करने के लिए we can upgrade, हम लोग नया machinery we can suggest to our MSME clients, or whenever they are doing some capex we can try to provide them incentives so that they can at least compete with the large or mega
projects. Subsidies and incentives are something which are the solution for competition with large players and unavailability of skilled labor. So we'll try to cover these things in today's session. Friends, now definition of MSME वैसे तो सबको पता है, but फिर भी since MSMED Act 2006 में आया था, so 2006 से लेके 2020 तक there was no change in the definition of MSME. I think medium को cover करने के लिए last scale was 10 crore investment in plant and machinery. उसके ऊपर अगर किसी ने भी plant and machinery में investment किया होता तो they would have come out of this MSME और उनको MSMEs के benefits नहीं मिल पाते थे in past. So 2006 से लेके हम लोग हमारी इकोनॉमी का भी बात करते हैं, हर साल नॉमिनल लेवल पे अवर इकोनॉमी रियल लेवल पे अवर इकोनॉमी ग्रोज बाय 6 to 7% काइंड ऑफ रेट. 2006 से लेके 20 तक 14 साल के अंदर सेम एमएसएमई जो कि उस टाइम पे भी 10 करोड़ की लिमिट थी और 2020 तक की भी सेम लिमिट थे. दे डिड नॉट चेंज द डेफिनेशन. somehow in 2020 it was being represented by various industry forums. हमारे CA इंस्टीट्यूट से भी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस definition should be changed क्योंकि बिजनेस का आज बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स जो 25-30 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट दे आर अगेन एमएसएमई क्लाइंट्स. दे शुड गेट द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी एमएसएमईस के लिए हो. सो फाइनली इन 2020 आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी सी चेंज्ड दिस डेफिनेशन और वहां पे अभी मीडियम के लिए 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी दैट हैज बीन कवर्ड. सो अर्लियर इट वाज ओनली इन प्लांट एंड मशीनरी, नाउ इट इज लिंक्ड टू टू पार्ट्स व्हिच इज investment in plant and machinery and turnover. So micro 1 करोड़ का plant and machinery में turnover. Yes. Audible? Okay. So ये डेफिनेशन अभी चेंज हुआ जहां पे माइक्रो के लिए 1 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर इज 5 करोड़. जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरेंस अगर आप देखेंगे दोनों में 1:5 का चल रहा है. 1 करोड़ 5 करोड़, 10 करोड़ 50 करोड़ और 50 करोड़ 250 करोड़. सो यू हैव टू कंप्लाई बोथ. इसमें एक दो चीजें खाली इंपॉर्टेंट समझने की है. वन इज वेदर एक्सपोर्ट टर्नओवर इज बीइंग कंसीडर्ड इन दिस डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई. सो आंसर इज नो. आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना भी रहने दो, अगर उसका सपोज प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ का है और उसका टोटल टर्नओवर इज 500 करोड़, आउट ऑफ विच डोमेस्टिक इज 200 एंड एक्सपोर्ट इज 300, स्टिल that entity would be considered as MSME और उसको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि एक्सपोर्ट टर्नओवर आपको एक्सक्लूड कर देना. आई थिंक इसका प्योर लॉजिक है. गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम एमएसएमईज. आप एक्सपोर्ट कितना भी कीजिए विल स्टिल गिव यू द बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई. एक और यहाँ पे छोटा सा चीज समझने लायक है जो कि कई बार हम लोग मिस कर देते हैं. बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता है बट स्टिल आई विल ट्राई टू गिव. यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. 50 करोड़ तक का 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज कवर्ड. सो अगर उसका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सब कुछ मिला के इन्वेस्टमेंट 70 करोड़ का है बट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट उसका 40 करोड़ का है, स्टिल that entity would be covered as MSME क्योंकि यहाँ पे they are talking about plant and. तो कई बार हम लोग on a face जब बैलेंस शीट देखते हैं तो उसका ग्रॉस ब्लॉक देखा, हम लोग ने साइज देखा, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है. सो इफ वी गो इन डिटेल, अगर वहां पे प्लांट एंड मशीनरी 40 करोड़ का आपका दिख रहा है, they can get the benefit of MSME. So these were the two important things which I wanted to cover in this definition. Rest is I think we all are aware. ये तो मैंने एकदम वहां से लिया है. सो वेरी यहाँ पे इन एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड में देयर इज वन थिंग व्हिच इज नीड टू बी डिस्कस्ड.
All these activities यहाँ पे mention को everything is excluded from the definition of MSME including wholesale, retail and trade. काफी बार हम लोग सुनते हैं wholesale, retail and trade business whether that is covered in MSME. So as per definition it is not covered. But in 2020 again there was a GR of central government came in wherein they wanted to give some benefit to wholesale and retail trade so that they allow the Udyam registration for wholesale and trade retailers also. But just for the single benefit which is to take the benefit of priority sector lending. MSMEs जितने भी रहते हैं you must be aware उनका जो बैंक के अंदर क्लासिफिकेशन होता है वो PSL के अंदर होता है. PSL में जहां पे उनके लिए गिविंग लोन at a rate of interest they can give at a cheaper rate. जहां पे हमारे हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन्स हो गया, these all are classified as under the RBI as a priority sector lending, and MSMEs are also classified as a priority sector lending, so that bank are being encouraged to give loans to MSMEs and they can get at a cheaper rate. So wholesale, retail and trade they are allowed to register as a MSME only to get this cheaper loans. Otherwise MSME समाधान, GEM portal या फिर आप subsidies के बारे में बात करें, nowhere they are allowed, so they are not part of the definition. Only for the single purpose they are allowed to be MSMEs. बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे? एलिजिबल फॉर जैम पोर्टल जो हम लोग ने डिस्कशन के लिए, ट्रेड्स पोर्टल के लिए, बिल डिस्काउंटिंग के लिए, दिस इज अगेन रिवोल्यूशनरी आई वुड से पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट एंड दे आर लाइक प्रमोटिंग इट लाइक एनीथिंग. एंड आई थिंक हम लोग ने भी काफी हमारे क्लाइंट्स वगैरह भी से भी सुना होगा. नाउ दे हैव मेड इट कंपल्सरी फॉर द कंपनीज हु हैव टर्नओवर मोर देन 300 crore. They have to compulsorily registered on trades portal by 31st March 2025. So they have created a deadline so that whenever those large corporates are buying goods from MSMEs can at least get those bills discounted without interference of anyone, and lot of banks are giving at a cheaper rate of interest on this trades portal. And eligible for MSME Samadhan, again we discussed about MSMEs का कई बार पैसा अटक जाता है, so these are the benefits which they can recover the dues, and these are the benefits of MSME registration. MSMEs are eligible for various state and central government subsidies, जो कि हम लोग आगे coming slides में will try to discuss. Eligible for classification under priority sector lending, all MSMEs are classified as a PSL, और आपको loan cheaper rate of interest you can get. CGT MSE के अंदर again collateral free MSMEs can get loans up to 5 crore. Eligible for machinery finance under SIDBI. SIDBI की friends there are a lot of schemes जहाँ पे manufacturing sector को boost करने के लिए they are giving आप अगर normal हम लोग PSU banks की rates हम लोग सबसे सस्ता consider करते हैं for corporates. 9-9.5% की आज के टाइम में अगर आपकी सिबिल रेटिंग बहुत ही अच्छी है तो भी स्टिल यू गेट MSME लोन्स एट 9.5%, बट सिडबी इज गिविंग स्टिल चीपर एज कंपेयर टू 1-1.5% उनका कहीं पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी. सो दिस काइंड ऑफ सिडबी से भी हम लोग हमारे क्लाइंट्स को वी कैन रेज द फंड्स by getting benefits of these MSMEs. Then benefit under section 43BH. I think ये तो पिछले 1-1.5 साल में हर फोरम के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो गया, and I think today would not be the time to spend more time on 43BH, but still I consider as a personal, I consider this is a good section which has been introduced for MSMEs. हो सकता है उसमें कुछ lacunas रहेंगे, government is trying to plug, but if we take in the right spirit, then 43BH is a good section wherein MSMEs can recover their dues within time of 45 days or 15 days, whatever it is. So this is again with a good intention government has brought in this section to support MSMEs. हम लोग एक subsidies incentives का सेशन कंप्लीट करने के बाद में we'll try to take question answer so that whatever are the questions we can take last में. बीच में थोड़ा सा otherwise we might miss on some important slides, so I think that is fine with everyone. Coming to the today's important topic about subsidies and incentives for MSMEs. लार्ज के लिए भी है, मेगा के लिए भी है, पर हम लोग वो आज कवर नहीं करते हैं. और टॉपिक इज फॉर MSMEs, बट गवर्नमेंट इज गिविंग फॉर एवरीवन एंड फोकस इज MSME. Now various government incentives for MSMEs in Maharashtra and central government. पहले हम लोग महाराष्ट्र का कवर करेंगे. PSI 2019 आई थिंक काफी लोगों को पता भी रहेगा. We'll try to cover in detail. बहुत ही अच्छी स्कीम है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की to support, and then we'll try to cover the central government schemes also.
Now before starting this subsidy and incentives, there are couple of important things which I wanted to discuss in prior, so that हम लोग जब आगे का discussion करें, we can link with all those things. Central government, state government subsidies MSMEs के लिए. Type of subsidies, there are two types of subsidies: front-ended subsidy, back-ended subsidy, credit-linked subsidy, non-credit linked subsidies. So ये important थोड़ी सी terms है जो कि हम लोग start में discussion कर लेते हैं. Friends, front-ended subsidy is something जहां पे आपको सब्सिडी का पैसा, सब्सिडीज आर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर कैपिटल सब्सिडीज, जो कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए जहां पे आप केपेक्स करते हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके लिए आपको इंसेंटिव सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है, वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. अब उसमें दो टाइप का आता है, फ्रंट एंडेड सब्सिडी, बैक एंडेड सब्सिडी. फ्रंट एंडेड सब्सिडी इज द सब्सिडी जहां पे आपको इंसेंटिव का पैसा प्रोजेक्ट लगने के स्टेज के ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट स्टेज ओनली यू गेट द इंसेंटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. आपका जब तक कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तब तक आपको इंसेंटिव्स मिल जाते हैं. दैट इज द फ्रंट एंडेड सब्सिडी. बैक एंडेड सब्सिडीज, आपको इंसेंटिव मिलेगा, यू आर एलिजिबल, बट you will get after the completion of the project, after the start of the commercial production, और उसके बाद में भी it could be after 3 years, 5 years, or maybe over a period of 7 years or 10 years, whatever it is as per the scheme. So that is the difference between front-ended and back-ended. थोड़ा सा कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में इसको एक्सप्लेन करता हूं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारा एक क्लाइंट है जिसका 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जहां पे उसको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, लेट्स टेक एग्जांपल वाड़ा के अंदर एक उसको फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगाना है, जहां पे उसको बोला आपको 60% कैपिटल सब्सिडी मिल रहा है, विच मींस 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 6 करोड़ का आपको सब्सिडी मिल रहा है. बट इट इज बैक एंडेड सब्सिडी. सो द थिंग इज, जो 6 करोड़ रुपए आपको सब्सिडी का मिल रहा है, स्टार्ट में तो यू हैव टू अरेंज दैट मनी फ्रॉम ईदर फ्रॉम द प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन और फ्रॉम द बैंक फंडिंग. सो 10 करोड़ अरेंज करने के लिए हम लोग मोटा मोटी इसको कंसिडर करते हैं. 3 करोड़ प्रोमोटर डाल देगा, 7 करोड़ आपका बैंक फंडिंग हो जाएगा. एंड दिस सब्सिडी यू विल गेट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. तो आपको 6 करोड़ जो रुपया मिलने वाला था, 60 लाख रुपया अगले 10 साल के अंदर मिलेगा. When that cash flow comes in, either you can repay your bank loan अगर आपने लिया है तो, or you can use it as a working capital आपको business में चाहिए, or if promoter want to withdraw it, they can withdraw it. There is no restriction on that. So that is basically जहां पे खाली अपन को client के point of view से कई बार उसको लगता है कि मेरा 80% सब्सिडी है, मतलब मेरे को तो 8 करोड़ रुपया लगाना ही नहीं है, मेरे को तो खाली 2 करोड़ रुपया अरेंज करना है. So that is not the case. आपको अरेंज तो शुरू में पूरा 10 करोड़ रुपया करना है, आपको ये मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years. उसकी भी लॉजिकली भी हम लोग आगे कुछ पॉइंट्स में डिस्कशन करेंगे, व्हाई गवर्नमेंट हैज मेड इट, एंड व्हिच इज वेरी लॉजिकल एंड गुड आल्सो, कि आपको एक्सचेकर को नुकसान नहीं होना चाहिए. उनका पर्पस था इस प्रोजेक्ट को अगले 10 साल तक, 15 साल तक गवर्नमेंट के लिए जीएसटी जनरेट हो, लेबर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो स्टेट के अंदर. दैट इज व्हाई दे वांटेड टू गिव सच काइंड ऑफ इंसेंटिव, सो व्हिच इज फेयर आल्सो. सो जब कई बार हम लोग क्लाइंट को समझाते हैं तो उसके दिमाग में ऐसा रहता है कि मेरे को सब्सिडी जो मिल रहा है उतना पैसा अरेंज नहीं करना है, बट इन बैक एंडेड सब्सिडी इट इज रिक्वायर्ड टू बी अरेंज, बाद में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. फ्रंट एंडेड सब्सिडीज जहां पे आपको शुरू में ही मिल जाता है, बट फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, आज से 15 साल पहले रेशियो वाज अपोजिट. 80% ऑफ द इंसेंटिव्स और सब्सिडीज वर फ्रंट एंडेड, खाली 20% बैक एंडेड हुआ करती थी. पर नाउ रेशियो हैज बीन टोटली चेंज्ड. 80% ऑफ द 90% ऑफ द इंसेंटिव्स आर बैक एंडेड, only 10-20% ऑफ इंसेंटिव्स आर फ्रंट एंडेड. सो which is good also as a professional. अगर हम लोग गाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, आपने जो पैसा जिस चीज के लिए उसी के लिए आपको यूटिलाइज करना है. यू हैव टू जनरेट, आपको बिजनेस ग्रो करना है, बिजनेस ग्रो करेगा तो हमारा भी प्रैक्टिस ग्रो होगा, एंड यू विल गेट द इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस रिगार्डिंग फ्रंट एंडेड, बैक एंडेड. क्रेडिट लिंक, नॉन क्रेडिट लिंक इज अगेन, क्रेडिट लिंक वर्ड से वी कैन अंडरस्टैंड जहां पे बैंक लोन होना कंपलसरी है. सो इन ईच एंड एवरी इंसेंटिव का अगर आप स्कीम पढ़ेंगे उसमें क्लियरली मेंशन रहता है वेदर इट इज अ क्रेडिट लिंक और नॉन क्रेडिट लिंक. क्रेडिट लिंक इज बेसिकली आपको वहां पे बैंक का टर्म लोन होना कंपलसरी है, एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड इज बेसिकली उसका एक ही रीजन, सब्सिडी डिपार्टमेंट इज बेसिकली वो उनका कोर एरिया भी नहीं है, या फिर गवर्नमेंट इज नॉट दैट मच प्रोफिशिएंट. सो दे अंडरस्टैंड दैट अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर बैंक ने फंडिंग किया है, वो आपके साइट के ऊपर 4 बार विजिट भी करेगा, ही विल इंश्योर दैट आपका वहां पे केपेक्स हो रहा है, प्रोमोटर ने अपना कंट्रीब्यूशन डाला है. सो इफ बैंक ने अपना वो जस्टिफिकेशन कर लिए हैं, तैयारी कर ली है, उसके बाद में उसने फंडिंग दिया है, सो दे आर इंश्योर्ड दैट मनी हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज टेकन. सो
दे ऑल्सो वांटेड, अगर आपका क्रेडिट लिंक रहेगा तो ही हम लोग आपको सब्सिडी देंगे, विच इज अ विन विन सिचुएशन फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर वी प्रोफेशनल्स ऑल्सो, कि क्लाइंट ने भी जिस चीज के लिए पैसा लिया था उसी के लिए वहां पे यूटिलाइज किया है। नॉन क्रेडिट इज अगेन कुछ सब्सिडीज है जहां पे बैंक लोन होना कंपल्सरी नहीं है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द केसेस नाउडेज इंसेंटिव्स आर क्रेडिट लिंक। सब्सिडीज स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, हम लोग सीधा डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट में आ जाते हैं। महाराष्ट्र में, सिंस वी आर सिटिंग इन महाराष्ट्र, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स इसी एरियाज में रहेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बेनिफिट हम लोग दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, हाउ वी कैन कवर दोस क्लाइंट्स इन द इंसेंटिव पॉलिसीज। दोस्तों, सो महाराष्ट्र की स्कीम समझने से पहले एक बार हम एक क्विक महाराष्ट्र क्यों, वाई महाराष्ट्र, और हमारे आसपास में क्या डेवलपमेंट हो रहा है जहां पे हम लोग अपने क्लाइंट को इंकरेज कर पाए कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, इस एरिया में इन्वेस्टमेंट कीजिए, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे समथिंग इज हैपनिंग। सो इफ यू आर अवेयर, तो मैं उसके ऊपर कुछ 2-4 मिनट आई ट्राई टू स्पेंड। महाराष्ट्र इज कंट्रीब्यूटिंग 40% टू द जीडीपी ऑफ इंडिया। जो हमने अगेन 300 लाख करोड़ का जीडीपी का बात किया, लगभग 45 से 50 लाख करोड़ की जीडीपी में महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन है, विच इज अगेन ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल स्टेट। यस, वी आर अ वेरी डेवलप्ड स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड in terms of area and population also, but still 14% Maharashtra is contributing into the GDP. वेरियस अपकमिंग इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बताऊंगा। बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट जो हमारे आसपास में आ रहे हैं, और आई थिंक पिछले 2-3 महीने में काफी लोगों ने सुना भी होगा वाधवान पोर्ट के बारे में। पालघर, यस, धानु, पालघर डिस्ट्रिक्ट में। सो again a very important project for Maharashtra. PM Narendra Modi ji, I think he inaugurated भूमि पूजन जो रहता है उनका शायद 2 महीने पहले उन्होंने किया था। Friends, it is gonna be 4 times bigger than JNPT। JNPT को जिसको हम लोग अपना one of the largest port का बात करते हैं, वाधवान पोर्ट is gonna be 4 times bigger। मैं थोड़ा सा टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं हूं, बट उसमें बोलते हैं कि वहां का जो डेप्थ है दैट इज बेटर देन JNPT। सो शिप्स होती हैं, उनको हार्बर पे आने के लिए आई थिंक डेप्थ का रिक्वायरमेंट रहता है, विच इज दे कैन कम मोर क्लोजर टू द पोर्ट एरिया। सो दैट इज द बेनिफिट विच दिस वाधवान पोर्ट इज गिविंग। एंड फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, ये पूरा एरिया, जैसे हम लोग JNPT के आसपास में आप देखिए बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप हुए हैं, लॉजिस्टिक हब डेवलप हुए हैं। भिवंडी का डेवलप होने का रीजन क्या है, वहां पे वेयर हाउसिंग इतना क्यों आया है? मानगांव का आप देखिए, देयर इज लॉट ऑफ वेयर हाउसिंग इज कमिंग इन दैट एरिया, बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ JNPT। उससे 4 गुना बड़ा पोर्ट अगर आपका ये वेस्टर्न लाइन के ऊपर, जो हम लोग सूरत और अहमदाबाद हाईवे का बात करते हैं, वहां पे आएगा, तो दिस इज गोना क्रिएट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू द एरिया विच इज नियर टू मुंबई। आज हमारे से यहाँ पे 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे आसपास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। इफ वी आर अवेयर, वी कैन एडवाइस टू अवर क्लाइंट आपको कहाँ पे यूनिट डालना है स्ट्रेटेजिकली, वेयर यू कैन पुट इन, या फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अगर किसी को लैंड लेकर रखना है। So there is gonna be lot of appreciation in everything. So that is how we, हमारे आसपास में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, we should be aware. State with one of the best road and rail connectivity. So I think Maharashtra is giving, after the Samruddhi Mahamarg, then Pune Mumbai Expressway, जहाँ पे हम लोग पहले no one has आज से 15 या 20 साल पहले same day पुणे जाके आया, वापस आना was not possible, but me, I travel 2 to 3 times in a month to Pune. मैं same day भी जाके मेरी meetings 2 से 3 meetings attend करके in that night I come back to Mumbai. So that is the kind of infra which this state is providing. Then Mumbai being a financial capital, lot of opportunities in these areas for MSMEs. अब जो हम लोग ने बात किए थे वाधवान पोर्ट, और उसके अलावा भी और क्या क्या हमारे आसपास में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, सो आई विल ट्राई टू कवर इन दिस स्लाइड। PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, PM मित्रा पार्क करके बोल रहे हैं, इन अमरावती। फ्रेंड्स, दिस textile park is a mega textile park which is coming in Amravati, which is a pet project of our textile minister Shri Piyush Goyal ji। वो काफी forums पे, he is also CA, he comes in, और वो काफी forums बोलते भी हैं कि textile is gonna be a rising sector, and they are creating a mega integrated textile park in Amravati with the investment of 10,000 crores। आज आप demographically देखिए,
विदर्भ का जो रीजन है वो कॉटन रिच बेल्ट बताता है, वहां पे जिनिंग प्रेसिंग आपको बहुत सारी यूनिट्स मिलती है, और वहीं से अमरावती इज अगेन नियर बाय एरिया, सो दे आर क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर हमारा क्लाइंट को इसी को इन्वेस्टमेंट करना है इनटू टेक्सटाइल सेक्टर, वी कैन सजेस्ट एटलीस्ट कि आप वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, यू कैन गेट लैंड एट अ चीपर रेट, और वहां पे आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स भी इफ यू पुट इन द यूनिट इन दिस काइंड ऑफ टेक्सटाइल पार्क्स। वाधवान पोर्ट जिसके बारे में आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, इट इज गोना क्रिएट अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। आज पूरा जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है, दहानू बोलिए या वाड़ा बोलिए, सो दीज एरिया इज गोना बी नेक्स्ट जो हमारे इंडस्ट्रियल हब्स बोलते हैं, विच विल क्रिएट इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर, आप कोल्ड स्टोरेज का बात करिए, वेयर हाउसेज का बात करिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का बात कीजिए, जिनका एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस रहेगा, दे विल ट्राई टू सेट अप देयर यूनिट। फ्रेंड्स, अब मैं साथ साथ में कुछ कुछ एग्जांपल्स भी आपको देता हूं। सो द एरियाज वेयर वी आल्सो प्रैक्टिस एंड वी ट्राई टू, पीपल कम फॉर सच काइंड ऑफ एडवाइसेस। सो सब्सिडीज में हम लोग बोलते हैं कि आपको एग्जीक्यूशन में तो एडवाइजरी का यू आर गोना चार्ज, और एज अ प्रोफेशनल फीस यू चार्ज, बट समटाइम लार्ज कॉर्पोरेट्स जिनको अपने 100 200 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होता है, दे कम एज ए एडवाइजरी सर्विसेज ऑल्सो। उनके लिए 5-6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कोई भी यूनिट सेटअप करने से पहले। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, चीप आपको लैंड कहां पे मिलेगा, एंड वन ऑफ द डिसीजन मेकिंग फॉर देम इज आपको इंसेंटिव सब्सिडीज कौन से स्टेट के अंदर मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। सो वी नॉर्मली एडवाइज टू अवर लार्ज कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, कई बार एमएसएमईज भी आते हैं जो कि हम लोग को 6 से 7 स्टेट देते हैं, वी आर गोना do say investment of 200 crore rupees, now tell us in which area from the subsidy point of view we should do। तो हम लोग उनको comparative study बना के देते हैं। So suppose in Maharashtra if you put a unit in suppose Wada, this is the incentive you are gonna get। आपको गुजरात के अंदर यूनिट लगाना है, आपको एमपी में यूनिट लगाना है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए we normally give। And friends, let me tell you again after this, because my this client, I would not like to take the name on the public forum, but it is a listed company। उन्होंने, they were aware of this Vadhavan port, so we have recently completed that study, and they are very focusedly thinking on this area because of उनका जो product है, that is a 100% export product, and they are considering this Palghar district as an upcoming investment of around 500 crore in that area for their manufacturing unit, because this port is going to be operational in next 4 to 5 years, and ऐसे यूनिट्स को लगने में भी टाइम लगता है, बट फ्रॉम लॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू दे आर गोना टेक दैट काइंड ऑफ डिसीजन। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, as a chartered accountant we can add value to our clients, जिसमें हम लोग as a professionally we can engage with them and we can add value to their future vision। So if you are aware of, there is a new MIDC which is coming in Palghar because of I think Vadhavan port का जो काफी टाइम से डेवलपमेंट चल रहा है, they are creating a new MIDC in Palghar district। New MIDC is coming in Aurangabad district also, Bidkin industrial area, so these are the developments। Delhi Mumbai expressway, this expressway is again gonna infra which is gonna add value to overall development of Maharashtra। Mumbai Ahmedabad high speed rail corridor, जो हम लोग बुलेट ट्रेन का बात करते हैं, Mumbai Nagpur bullet train project which is again gonna add value to Maharashtra। Nagpur Wardha National Mega Logistic Hub, again in Nagpur Wardha they are creating a national mega logistic hub with an investment of 25,000 crore, 25,000 crore की investment के साथ में they are gonna create a bigger hub than जो हम लोग भिवंडी के आसपास के एरिया का बात करते हैं, उससे 10 times bigger hub they are gonna create in that area just for the logistic। क्योंकि एक बार आपको जब आपका समृद्धि महामार्ग से पूरा कनेक्टिविटी हो जाएगा from south also, and Nagpur Wardha is considered to be a central location for the India। वहां से आप 12 घंटे में अगर बाई रोड किसी भी साइड में, once your road network is good, in 10 to 12 hours you can cover any of the part of the country। So they are going to create a big logistic hub in Nagpur Wardha। Then state logistics hubs which is in Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna, Thana Bhiwandi, Ratnagiri, Sindhudurg, Pune Purandar, Palghar, Vadhavan state logistics hubs। So these are the infra developments which are happening in Maharashtra and near to Mumbai। So if we are aware of these kind of developments, we can at least suggest हमारे clients होते हैं जो logistic में रहेगा, जो कुछ नया investment करना रहेगा, manufacturing में डालना रहेगा। So if we are aware these developments are happening, we can suitably advise to our client and add value to their investments। Freight corridors. Absolutely, Mumbai Delhi freight corridor is Very fast. yes, yes।
नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू वेरियस सब्सिडीज अगेन, जब भी मैं महाराष्ट्र का बात करता हूं, थोड़ा सा आपको उसका महाराष्ट्र का और फील देता हूं सब्सिडी के अंदर. Maharashtra is the first state which started its own state industrial policy in 1964. 1964 के अंदर महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट. उस टाइम पे किसी स्टेट ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग को अपनी एमएसएमईज को या लार्ज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए स्टेट इंसेंटिव्स देने चाहिए, सब्सिडीज देना चाहिए. महाराष्ट्र केम अप विद देयर फर्स्ट इंसेंटिव पॉलिसी इन 1964 व्हिच इज कंटिन्यूअस टिल डेट नाउ. अभी 2019 से 24 का पॉलिसी चल रहा था, जो कि 24 वाला मार्च 24 में कंप्लीट हो गया था. बट सिंस इलेक्शन ईयर था तो उन्होंने उसको एक्सटेंड किया हुआ है टिल द न्यू पॉलिसी कम्स इन. अब नया गवर्नमेंट बन गया तो मे बी नेक्स्ट 3 to 4 months we can expect a new policy of Maharashtra, but it is working since 1964 till date. Maharashtra incentive policy is there. And friends, let me tell you, 2000 तक तो मेरे को लगता है खाली 5 से 6 स्टेट थे इंडिया के अंदर जहां पे उनकी स्टेट इंसेंटिव पॉलिसी हो सकती थी. आज की डेट में 20 states are there which have their state policies, और most of the states ने जो पैटर्न लिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए, they have tried to cover the Maharashtra state industrial policy, so which is a very good policy. अगर हम लोग को इसके बारे में थोड़ा सा पता है, थोड़ा सा डिटेल में we are aware, sometimes we'll try to cover. हमारे कई बार एमएसएमई क्लाइंट्स बोलती भी कि इंसेंटिव पॉलिसीज होती तो है पर मिलती नहीं है. उसके भी रीजंस होते हैं. समटाइम्स दे डजंट कंप्लाई विद बीइंग एमएसएमईज. कुछ चीजें उनको पता नहीं रहती है, वो लोग कंप्लाई नहीं कर पाते हैं. यूनिट लगाने के 2 साल बाद में आएंगे, फिर उनको ध्यान आएगा कि हाँ सब्सिडी जैसी भी कोई चीज हुआ करती थी, दिमाग में किसी ने बताया होगा कि आपको इंसेंटिव भी मिल सकता था. दे विल कम आफ्टर पुटिंग यूनिट आफ्टर 2 years, बट दैट इज नॉट द राइट टाइम बिकॉज यू हैव मिस्ड द ट्रेन, यू हैव मिस्ड द बस. आप काफी लेट आए हो. बट एज अ प्रोफेशनल वी चार्टेड अकाउंटेंट्स, इफ वी आर अवेयर आपको कौन से स्टेज पे अप्लाई करना था, आपकी कौन से स्टेज पे उसको गाइड करना था. इफ क्लाइंट हैज कम टू अस एट अ राइट अप्रोप्रिएट टाइम, वी हैव गाइडेड हिम प्रॉपरली. जो भी उसको 2-3 अप्रूवल्स लेने हैं जो कि उसको बाद में भी लेने हैं, आज उसने नहीं लिए हैं, बट ही विल पे पेनल्टी फॉर 5-6 years, 7 years, 10 years, और 10 साल बाद में जाके उसको अप्रूवल लेना ही पड़ेगा. बट सिंस ही डिड नॉट टेक दोज अप्रूवल्स, ही मिस्ड द बेनिफिट्स ऑफ इंसेंटिव सब्सिडीज. इन्हीं सब चीजों के कारण आपको इंसेंटिव सब्सिडीज नहीं मिल पाते हैं. अगर आपने क्लाइंट को टाइमली सजेस्ट कर दिया कि आप ये सब चीजें लेके रखिए, यू टेक ऑल दीज अप्रूवल्स, यू टेक दीज रजिस्ट्रेशंस एंड अप्लाई विद इन द राइट टाइम, you get incentives. Friends, मेरे को भी अभी इस फील्ड के अंदर काम करते हुए फ्रॉम लास्ट 15 years वी आर वर्किंग इन एमएसएमई इंसेंटिव सब्सिडीज. एंड लेट मी टेल यू, 15 साल पहले मेरे को भी सब्सिडी का एस भी नहीं पता होता था. बट समहाउ जब हम लोग अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो जो भी सामने एरियाज आते हैं विल ट्राई टू एक्सप्लोर, क्योंकि पैसा तो आना चाहिए किसी भी उससे आए एडवाइजरी सर्विसेज से. सो दैट इज हाउ इन 2011-12 समथिंग आई स्टार्टेड. तब जाके समझ में आया कि फंडिंग करते करते, फंडिंग वाज समथिंग व्हिच मेरे को थोड़ा सा पास में जॉब में के टाइम पे भी एक्सपीरियंस था. सो फंडिंग करते करते आई एक्सप्लोर दिस एरिया एंड समहाउ आई कुड ऐड वैल्यू टू माय फर्स्ट क्लाइंट इटसेल्फ, जो कि विद द गॉड्स ग्रेस उस टाइम पे थोड़ा पढ़ा किया क्या इंसेंटिव्स होते हैं. 2-4 प्रोफेशन में जो सब्सिडीज की प्रैक्टिस करते हैं, जो गुरु जिनको हम लोग बोलते हैं, उनसे एडवाइस लिया, समझा. दे रियली सपोर्टेड अस एंड that is how we also started and we guided the client. And due to that, उस client को भी नहीं पता था कि उनको incentive subsidies मिल सकते हैं. Somehow on a project of 7 crore, we could get them a subsidy of 2 crore during those days. And again, it was a windfall gain for him, which he never understood. And it added as a professional advisory services to us also. So I always say that अगर हम लोग को पता रहेगा, हम लोग ने right time पे कर दिया उसको एडवाइस. So I always say अपना जो बाकी का प्रैक्टिस, आप जीएसटी में काम कर रहे हैं, आप इनकम टैक्स में कर रहे हैं, वो कंटिन्यू करते रहिए. बट एमएसएमई ऑल्सो यू कैन ऐड एज अ एरिया ऑफ प्रैक्टिस, जहां पे आप उसके लिए काफी अच्छा, जो आजकल हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से हटके हम लोग क्या दे सकते हैं क्लाइंट को. एंड फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंप्लायंस है उसके लिए क्लाइंट को पैसा जबरदस्ती देना पड़ता है, पर हम लोग उसके लिए फंडिंग करवाते हैं, हम लोग उसको इंसेंटिव सब्सिडीज दिलवाते हैं. वहां पे उसको फायदा होगा तो ही विल सर्टेनली ट्राई टू कीप यू engaged and he will try to remunerate you. एक और मैं इसमें कई बार बोलता हूं, जब हम लोग मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो somehow people used to tell, अगेन कंप्लायंस के अंदर आपको फीस का बिल रेज करेंगे तो मे बी 6 महीने 8 महीने ऐसा, दैट आई यूज्ड टू हर्ट कि इतने टाइम में पैसा मिलेगा, वो भी आपको फॉलो अप करना पड़ेगा. सो आई थॉट कि ठीक है, फंडिंग का काम करते हैं, जहां पे उसको अगर पैसा मिलेगा, हम लोग ने प्रोजेक्ट फंडिंग करवा के दिया तो हो सकता है वो मेरे को फीस जल्दी देगा. सो दैट इज हाउ आई एंटर्ड इनटू फंड रेजिंग एक्टिविटीज.
अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैंने ये किया तो साथ में मैंने सब्सिडीज ऐड किया। फंड रेजिंग में क्लाइंट हैज टू रीपे, आज उसने लोन लिया है पर उसको 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में हैज टू रीपे दैट लोन बैक टू द बैंक। बट फ्रेंड्स, इन incentives and subsidies, it is a grant which government is giving. आपको पैसा मिलना है जिसको आपको वापस नहीं करना है। सो try to understand, I'm just relating it from the fees point of view, from the professional opportunities. आपने अगर क्लाइंट के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दी है जहां पे उसको इंसेंटिव बेनिफिट्स मिल रहा है, so how easier it would be for you to get the remuneration or to get the advisory services. So that is how I normally relate. अब जितना क्लाइंट के लिए वैल्यू ऐड करके देंगे, you will get benefit. अब मैं महाराष्ट्र की जो हम लोग बात कर रहे थे, फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये स्लाइड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र इज द स्टेट, आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे 15 पॉलिसीज के अंदर नाम लिखे हुए, एक्सपोर्ट पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, टूरिज्म, लॉजिस्टिक, मैरीटाइम डेवलपमेंट, डिफेंस, आईटी, आईटीएस। महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट, आपकी जो पीएसआई 2019 उसको हम लोग मदर पॉलिसी बोलते हैं, वो तो आपकी एक ओवरऑल जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो महाराष्ट्र के अंदर, यू विल गेट द इंसेंटिव। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर डूइंग सम स्पेसिफिक, दीज आर द अपकमिंग एरियाज और फोकस्ड एरियाज ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, वो बोलता है कि आप इनमें से कहीं पे भी काम किया, वी विल गिव यू एडिशनल बेनिफिट्स इफ यू डू केपेक्स इन एनी ऑफ दीज एरियाज। सो महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट विच हैज 15, इसके अलावा भी 2-3 और है विच आई हैव नॉट कवर्ड अगेन, उनका स्कोप और वो सब देखते हुए। सो बट महाराष्ट्र इज द स्टेट विच हैज थॉट ऑफ ईच एंड एवरी सेक्टर, आपका चाहे टेक्सटाइल से हो, टूरिज्म से हो, एक्सपोर्ट हो, फूड प्रोसेसिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, दे हैव कवर्ड। अलोंग विद दैट, हम लोग अभी शायद सेशन स्टार्ट होने से पहले विजेता जी से विमेन एम्पावरमेंट का बात कर रहे थे। महाराष्ट्र इज द स्टेट which it is the only state in India which has a specific policy for women entrepreneurs also. अगर आपकी किसी इंडस्ट्री के अंदर women entrepreneur हैं, they are giving additional benefit to the women entrepreneur. And friend, which this is very important. अभी हम लोग आगे की स्लाइड्स में डिस्कशन करेंगे। बॉम्बे के पास में बैठते हुए these kind of advisory if we give to our clients, we can create a lot of value in terms of incentives and subsidies for our clients. पहले हम लोगों ने बात किया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत सारी स्कीम्स है। नेशनल एग्री इंफ्रा फंड स्कीम 3% इंटरेस्ट सब्सिडीज देयर, पीएम किसान संपदा, नाबार्ड, अपेडा, NHP, NHN सब्सिडी फॉर हॉर्टिकल्चर, नेशनल सब्सिडी फॉर कोल्ड स्टोरेजेस। सो अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारी है, बट आई जस्ट ट्राई टू कवर द इंपॉर्टेंट इंसेंटिव सब्सिडीज। सेंट्रल गवर्नमेंट में मैक्सिमम जो है वो फूड प्रोसेसिंग या टेक्सटाइल से रिलेटेड है, बट हाँ फॉर MSMEs वी आर टॉकिंग अबाउट। लार्ज के अंदर तो PLI, आई थिंक हम लोग ने 2020 में जो सुना था, विद 2 लाख करोड़ ऑफ इंसेंटिव्स गवर्नमेंट हैज प्लान्ड फॉर PLIs, 14 सेक्टर ऑफ PLIs, दैट इज फॉर प्रीडोमिनेंटली फॉर लार्ज एंड मेगा प्रोजेक्ट्स, बट उसमें कुछ कुछ सेक्टर्स के अंदर MSMEs भी कवर होते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस मेनली फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल या फिर लार्ज कॉर्पोरेट्स के इन्वेस्टमेंट के लिए है। सो दीज आर द स्कीम्स। बट स्टेट गवर्नमेंट इज महाराष्ट्र के अंदर हम लोग बात करते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कशन किया, दे हैव कवर्ड ऑल द सेक्टर्स। विमेन को उन्होंने ध्यान में रखा, और साथ में अगर आप इन सेक्टर्स में कहीं पे कवर नहीं भी हो रहे हो तो यू हैव द मदर पॉलिसी PSI 2019, जहां पे आपने अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महाराष्ट्र में डाली है, देयर आर एरियाज, कुछ एरियाज है जहां पे आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वहां पे भी विद द प्रॉपर प्लानिंग विद इन द लॉ हम लोग कैसे उसको प्लान करके वहां पे भी इंसेंटिव्स दिला सकते हैं। बट देयर इज सम इंसेंटिव, सब बेनिफिट इफ any of your client is doing a capex, land building plant and machinery में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहा है, you can get some incentives or benefit under PSI 2019. that is why we call it a mother policy. तो हम लोग आज अभी नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में PSI 2019 डिस्कशन करेंगे। बाकी की पॉलिसीज में लाइक विमेन ऑल्सो आई ट्राई टू स्पेंड सम टाइम, हम लोग प्लानिंग के साथ में कैसे क्लाइंट के लिए बेनिफिट करवा सकते हैं। Coming to PSI 2019, so
जैसा मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया, सो हर 5 साल में नई पॉलिसी आती है। 2019 से जो आई थी वो 2024 के अंदर मार्च के अंदर कंप्लीट हो गई थी, बट सिंस इलेक्शन ईयर था अभी, बट स्टिल आज की डेट में भी PSI 2019 इज एक्टिव। अगर कोई नया प्रोजेक्ट डालता है, ही वुड बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट, बिकॉज इन पॉलिसी इटसेल्फ इट इज रिटन दैट टिल द न्यू पॉलिसी कम्स इन इट वुड बी कंटिन्यूइंग। सो जब भी अगले 3-4 महीने में या 2 महीने में जब भी नई पॉलिसी आती है, वी आर एक्सपेक्टिंग इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मार्च से पहले शायद आनी चाहिए, बिकॉज न्यू गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड एंड व्हाट वी हैव सीन इज दिस इज अ प्री सपोर्टिव इंडस्ट्रियल सपोर्टिव गवर्नमेंट, दे वुड सर्टेनली कम अप विद, और वी आर एक्सपेक्टिंग कुछ ना कुछ बेटरमेंट करके ही आना चाहिए, विच वी कैन नॉट कमेंट एज ऑफ नाउ, बट वी आर अंडरस्टैंडिंग MSMEs के लिए वो लोग अच्छा बेनिफिट देंगे। जस्ट टू गिव सम फिगर्स, लास्ट PSI के अंदर सब्सिडीज का जो उनका टारगेट था, दैट वाज 3000 करोड़ ऑफ सब्सिडीज टू बी डिसबर्स्ड अंडर PSI 2019। जिन्होंने उस पीरियड के अंदर 2019 से 24 के अंदर या फिर अभी भी यूनिट लगा रहे हैं, उनके लिए इंसेंटिव इज एलोकेटेड 3000 करोड़ इन PSI 2019। ऑब्जेक्टिव आई थिंक हम लोग ने काफी देख लिए हैं। सो PSI 2019 बेनिफिट्स कितना तक हो सकता है फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू। इन महाराष्ट्र PSI 2019 के अंदर यू कैन गेट इंसेंटिव अप टू 100% ऑफ FCI। FCI is fixed capital investment, and I'm stressing on the word investment in land, building, plant and machinery। कई बार हम लोग को इंसेंटिव के बारे में लगता है कि आपको, या फिर बहुत सारी स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की, हम लोग स्कीम्स देखेंगे, टफ्स का जो हम लोग बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दोज इंसेंटिव्स आर only on investment in plant and machinery. Maharashtra is the state PSI under PSI 2019. They are giving subsidy on purchase of land cost also. So their project cost जो हम लोग FCI का बात करते हैं, which includes investment in land, building, plant and machinery, तीनों चीज को वो कवर करता है। अगर आपको कहीं पे 100% सब्सिडी मिलता है, there are certain areas जो कि मैं अभी आगे की कमिंग स्लाइड्स में डिस्कशन भी करूंगा, कौन सी एरियाज में आपको 100% सब्सिडीज मिल सकती हैं। वहां पे अगर आपके किसी MSME क्लाइंट ने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी में, ही इज एलिजिबल टू गेट दैट 10 करोड़ एज ए सब्सिडी ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। हर साल उसको 1-1 करोड़ का सब्सिडी मिल सकता है। देयर आर सर्टेन एरिया। सो लैंड इज समथिंग काफी सारे स्टेट्स कवर नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कवर नहीं करती है। बिल्डिंग कुछ स्टेट्स करते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स करती हैं, और कुछ स्कीम्स तो खाली प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट कवर करती है। बट इन महाराष्ट्र इट इज एंटायर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सो विच इज समथिंग इंपॉर्टेंट। स्पेशल विमेन पॉलिसी 2017 which is operative till now also, ये PSI के साथ साथ में चलती है। सेम बेनिफिट्स विच यू आर गेटिंग इन PSI 2019, जो आपकी मदर पॉलिसी है, खाली उसमें जो एडिशनल बेनिफिट है, एक तो 1 करोड़ का एडिशनल सब्सिडीज देयर ऑन उसके स्केल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट PSI 2019 अगर किसी को आइडिया, तो बट आई ट्राई टू कवर इन कमिंग स्लाइड्स आल्सो। यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र को उन्होंने 7 जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, A, B, C, D, D+, नक्सलाइट एरिया एंड नो इंडस्ट्रियल एरिया और एस्पिरेशनल एरिया बेसिकली। तो आपको एरिया वाइज सब्सिडी मिलती है। इन महाराष्ट्र सर्टेन एरियाज आर देयर विच आर इन A जोन। A जोन के अंदर आपको PSI 2019 के अंदर 0 सब्सिडी है, बट if the client is women entrepreneur, अगर आप उसके अंदर women entrepreneur है, then in A zone also you can get the benefit of C zone। अब मैं आपको just for the comparison, PSI 2019 में A के अंदर 0 है, C के अंदर 40% सब्सिडी है। नाउ मैं आपको एक छोटा सा साथ में एग्जांपल देता हूं, वसई जिसका हम लोग बात करते हैं, वसई इज इन ए जोन। यहाँ पे आपको अगर किसी ने नॉर्मल PSI 2019 स्कीम में लगाया है, मेल एंटरप्रेन्योर है, आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। बट वहीं पे अगर विमेन एंटरप्रेन्योर ने लगाया है, आपके उनके जो प्रमोटर है, उनकी वाइफ है, सिस्टर है, मदर, इफ दे आर एंटरप्रेन्योर और पार्टनर और डायरेक्टर इन दैट कंपनी, in Vasai also you can get incentive of 40% investment in land, building, plant and machinery। so जो हम लोग प्लानिंग का बात करते हैं, विद इन द फ्रेमवर्क रहते हुए, लॉज को कैसे हम लोग इंटरप्रेट करके, ये सब क्या होता है, स्टार्ट में जब क्लाइंट नया कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, जिस टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है, लैंड लेने से पहले वो आपसे बात कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, यू कैन गाइड हिम कि से इफ यू कैन मेक इट अ विमेन एंटरप्रेन्योर, या फिर वहां पे हो सकता है उनके वाइफ और मे बी सिस्टर और मदर, दे माइट बी इन्वॉल्व इन द बिजनेस आल्सो। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ मेल एंटरप्रेन्योर कंपनी, मेक इट अ विमेन एंटरप्रेन्योर। इफ यू आर पुटिंग अ यूनिट इन Vasai, यू कैन गेट 40% सब्सिडी। 10 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट करना था, आप मेल एंटरप्रेन्योर करते तो Vasai में 0 सब्सिडी मिलता था, अब आपको 4 करोड़ का सब्सिडी मिल रहा है। जस्ट
by giving an input of this women entrepreneur policy जो कि आपको पता था, so that you could guide to the client and you could add value to that client. So these are the kind of, हमारे आसपास में बहुत सारे एरियाज भी है which we will discuss कि कौन से एरियाज में नॉर्मल के अंदर भी आपको इंसेंटिव मिल सकता है, जो कि बॉम्बे से 60 70 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पे ही है. So in the coming slides we will discuss, but these are the things जो हम लोग को अगर पता रहेगा तो we can guide to our clients. So women policy का जो मैंने आपको बेनिफिट बताया, only the thing is आपका अगर ए में लगा रहे हो तो आपको सी का बेनिफिट मिलेगा, बी में लगा रहे हो तो डी का मिलेगा, सी में लगा रहे हो आपको डी प्लस का बेनिफिट है. सो एक एक अपर नॉच का आपको बेनिफिट मिलता चला जाएगा इफ यू आर पुटिंग इन एनी ऑफ द जोन्स. अपार्ट फ्रॉम दैट 1 करोड़ का उसमें एडिशनल सब्सिडी है. खाली मैं यहाँ पे 2-3 सिंस विमेन एंटरप्रेन्योर का हम लोग आगे हो सकता है इतना डिटेल में बात नहीं कर पाए, सो आई ट्राई टू कवर. ये शायद क्वेश्चन भी अदरवाइज आएगा ही आप लोगों में से. What is the definition of women entrepreneur under PSI 2019? So यहाँ पे उन्होंने 2 important conditions हैं women entrepreneur के लिए. It has to be 100% owned by women. So if it is a proprietorship, आपका proprietor women होना चाहिए. If it is a partnership, then all partners has to be women. कुछ policies होती है जहाँ पे women entrepreneur is 51% पे आप उसको consider करते हो, but in PSI it is specifically written that women policy, it is specifically written that if it is more 100% women, then only we will give the benefit. So जब आप एडवाइस करें क्लाइंट को, you should tell him अगर आपको प्रोप्राइटर बनाना है तो विमेन को रखिए, या फिर इफ विमेन इज इनकॉर्पोरेटिंग देन इट इज फाइन. पार्टनरशिप में 100% विमेन हैज टू बी पार्टनर. इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑल द डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स हैज टू बी विमेन. ऑल डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स तो है ही है, साथ में डायरेक्टर हैज टू बी विमेन. और अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड कंडीशन इज more than 51% of your employees has to be women. So उस केस में खाली मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं, since we work in this, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स आपके कैसे भी रहे वो कंसिडर नहीं होगा. आपके जो पेरोल पे हैं 15 है 20 है 30 है whatever it is, you have to ensure that more than 51% are women. So ये 2 कंडीशन आपने अगर फुलफिल किए क्लाइंट के लिए, you can get him benefit of PSI 2019 women पॉलिसी के अंदर. किसी ने अंबरनाथ, अगेन मैं अंबरनाथ का सिंस इट इज एमआईडीसी एरिया या तलोजा का बात करता हूँ, ये सब ए जोन में आता है. यहाँ पे किसी ने नॉर्मल यूनिट लगाना है तो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, बट सेम वे आपने अगर क्लाइंट को एडवाइस कर दिया विमेन एंटरप्रेन्योर में लगाइए तो आपको उसी एरिया के अंदर 40% सब्सिडी यू कैन गेट. Sir, what should be the qualification of women? So qualification nothing is mentioned, so it is open. No, it is not, but they have entrepreneur के लिए we have seen धीरू भाई अंबानी, आज उनका क्लासिकल एग्जांपल है हमारे सामने. So entrepreneur के लिए I think business acumen is the criteria or qualification. So jokes apart, पॉलिसी में कहीं पे भी मेंशन नहीं है. कुछ 1-2 पॉलिसीज है, सिंस सर आपने बात किया तो वहां पे एज का क्राइटेरिया है. पीएमईजीपी करके स्कीम है, सीएमईजीपी है, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उनके अंदर वहां पे उन्होंने एज का भी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन का भी है, बट इन दिस देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफिकेशन. Then all should be direct. Yes, 100%. Shares there was the And directors, ownership and management has to be with women. Maharashtra State Electronic Policy 2016, Maharashtra EV Policy 2018. फ्रेंड्स अगेन जैसे हम लोग ने बात किया, PSI 2019 हमारा मदर पॉलिसी है, उसके नीचे विमेन आ गया, उसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी आ गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी. तो ये सब जो PSI के बेनिफिट्स आपको वही मिलने वाले हैं. खाली फर्क इसमें ऐसा है, अगर किसी ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग या तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चर कर रहा है या उसके पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, ईवी के पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ PSI 2019. ओनली द थिंग इज उसको एक नॉच ऊपर की जोन का बेनिफिट मिलेगा. सो आपने ए जोन में किसी ने अगेन अंबरनाथ के अंदर ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया, पार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है, नॉर्मल में उसको कोई बेनिफिट नहीं है, बट अगर उसने ईवी लगाया है ही वुड बी कवर्ड अंडर ईवी पॉलिसी 2018. एंड इन अंबरनाथ आल्सो ए जोन आल्सो ही कैन गेट द बेनिफिट ऑफ सी जोन which is 40% सब्सिडी. तो हम लोग को वुमेन के साथ में सेक्टर्स भी पता है कि अगर आपने इन सेक्टर्स में भी लगाना है, किसी का मन है कि मेरे को तो अंबरनाथ में लगाना है, या फिर हम लोग कई बार बात करते हैं जब व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का बात आता है, पुणे के पास में चाकन करके एरिया है. चाकन इज अ लार्ज हब, वी ऑल नो दैट इंडिया में 3-4 ऑटोमोबाइल हब्स है, उसमें से चाकन इज वन ऑफ द हब. इट इज अंडर द ए जोन, उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलता है. बट अगर किसी ने वहां पे
ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है या पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है, वहां पे उसको 40% सब्सिडी मिल जाएगा. सो दैट इज, हम लोग औरंगाबाद का बात करते हैं, औरंगाबाद टू व्हीलर का, बजाज का दे हैव बिग प्लांट, और भी है शायद एक दो वहां पे, टीवीएस वगैरह के प्लांट भी हैं. सो अगेन वहां पे अगर किसी ने ईवी से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है, औरंगाबाद ऑलरेडी डी जोन के अंदर है, अगर आपने ईवी से रिलेटेड लगाया था आपको डी प्लस का बेनिफिट मिल जाएगा. सो नॉर्मल डी में आपको 60% मिलता था, डी प्लस में आपको 80% का बेनिफिट मिलता है. सो हायर नॉच यू गेट इन इफ यू आर डूइंग ए स्पेसिफिक पॉलिसी रिलेटेड. Assembling of CPS imported from China, Hong Kong, and just assembling it in the Vasai was actually regarded as a manufacturing. So in PSI 2019 assembly also they considered, आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी में होना चाहिए. अगर आपको असेंबली करने के लिए भी आपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ PSI 2019. आपका क्वेश्चन कुछ दूसरी स्कीम से रिलेटेड है. पीएलआई जो है, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का बात करते हैं, वहां पे वो लोग असेंबली को प्रमोट नहीं करते हैं. बट इन पीएसआई महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, इफ यू आर डूइंग असेंबली आल्सो, दैट इज कंसिडर्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, प्रोवाइडेड आपका इन्वेस्टमेंट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर होना चाहिए. अगर आप एक आधा पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बाकी का असेंबली भी कर रहे हो, तो स्टिल यू कैन गेट. मैं आपको इसमें थोड़ा सा और एक दो क्लासिकल एग्जांपल देता हूं. फूड प्रोसेसिंग के अंदर कई बार क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग का प्रोसेस रहता है, जहां पे आप बल्क में लेके आते हो, उसको क्लीन, ग्रेड, सॉर्ट करके नहीं करते हो. सो दैट एक्टिविटी इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन पीएसआई. आपको वहां पे भी बेनिफिट मिल सकता है. या फिर स्टील इंडस्ट्री में कई बार मेरे पास में क्लाइंट्स आते हैं, वी हैव क्लाइंट्स आल्सो, जहां पे वो साइजिंग करते हैं. आपके पास में बड़े रोल्स आते हैं और रोल्स को आपको स्पेसिफिक साइज में कट करके यू हैव टू मेक इट अ स्मॉलर साइज, या उसका स्पेसिफिक आपको डिजाइन के हिसाब से कट करके देना पड़ता है. दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. तलुजा में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हम लोगों ने उनको एडवाइस किया है, बाय गेटिंग विमेन एंटरप्रेन्योर दे कुड गेट द बेनिफिट ऑफ दीज काइंड ऑफ सब्सिडीज. सो एवरीथिंग इज कवर्ड. मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर. For PSI 2019 we are talking about, not about any other policy. हर policy के अंदर definitions थोड़ी different है, that we have to see. Key features of PSI 2019, हम लोग ने एक दो चीजें तो डिस्कशन कर लिया. Available on the investment on land, building, plant and machinery, which is important. Land का normally कोई स्टेट में नहीं मिलता है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं मिलता है, but in Maharashtra you get incentive on land also. अवेलेबल फॉर न्यू एज वेल एज एक्सपेंशन. अगर किसी ने नया यूनिट डाला है तो भी आपको मिलेगा, या फिर अगर आपने किसी का ऑलरेडी यूनिट चल रहा था उसमें एक्सपेंशन किया है, देन आल्सो यू कैन गेट बेनिफिट अंडर PSI 2019. एक्सपेंशन की खाली 2-3 क्राइटेरियाज है. आपने अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सपोज 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, 50 लाख की मशीनरी ऐड की है, दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज. सो उसमें 3 क्राइटेरियाज है फॉर एक्सपेंशन. आपका मोर देन 25% केपेक्स इंक्रीज होना चाहिए, मोर देन 25% कैपेसिटी इंक्रीज होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट मोर देन 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग. सो अगर आपने ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल किए, देन यू वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंशन. एक्सपेंशन में खाली ये है, जो आपको टोटल सब्सिडी मिलने वाला था फॉर द न्यू यूनिट, उसका 75% मिलता है. सो अगर किसी एरिया के अंदर 60% मिलने वाला था, तो वहां पे आपको 45% का इंसेंटिव मिलेगा. इन एक्सपेंशन थोड़ा सा कम कर देता, बट स्टिल यू विल गेट द बेनिफिट. Entire Maharashtra is divided into 7 zones, A, B, C, D, D+, no industrial, aspirational. ये हम लोग आगे ही स्लाइड्स में देखेंगे. हमारे आसपास में, since we are sitting in मुंबई, तो यहाँ पे आसपास में कौन सा, या फिर फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे बहुत सारे MSME क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो हब, सिंस फाइनेंशियल हब मुंबई है, तो उनको कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पे रखना है. वी आर अप्रोचेबल टू देम आल्सो, पर उनका यूनिट हो सकता है यहाँ से महाड़ के अंदर रहेगा, विच इज अ केमिकल जोन. यहाँ से पूना के आसपास में कहीं पे अगर उसका फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड यूनिट हो सकता है. सो एरियाज जैसे जैसे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन से एरियाज है जहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है. कैपिटल सब्सिडी फ्रॉम द रेंज ऑफ 30% to 100%. मैंने आपको बताया, जैसे विल सी इन कमिंग स्लाइड्स, 30% से लेके 100% तक का सब्सिडी मिल सकता है. Available over a period of 7 to 10 years. So PSI is not a front-ended subsidy. आपको इन्वेस्टमेंट पूरा या तो खुद को करना है या बैंक से फंडिंग लाके करना है. इसका बेनिफिट आपको अगले 7 से 10 साल के अंदर, कुछ एरियाज में 7 साल है, कुछ एरियाज में 10 साल है, तो आपको जो भी सब्सिडी मिलती है दैट वुड बी डिवाइडेड बाय 7 और डिवाइडेड बाय 10 करके 10 करोड़ का सब्सिडी मिलना है, 10 साल में मिलना है, तो आपको हर साल 1 करोड़ का इंसेंटिव यू विल गेट. बट इट इज अ बैक एंडेड सब्सिडी. क्लाइंट को समझाने के हिसाब से केपेक्स आपको शुरू में करना पड़ेगा, कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू आपको फंड अरेंज करना पड़ेगा, बट यू विल गेट ओवर अ पीरियड ऑफ 7 to 10 years. बैक एंडेड सब्सिडी नॉट क्रेडिट लिंक. सो PSI का एक थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ नॉन क्रेडिट लिंक, पर
बैंक लोन होना कंपलसरी नहीं है, पर इसमें उन्होंने 2-3 कुछ चीजें ऐसे कवर कर दी है। अगर आप बैंक लोन लोगे तो आपके लिए सब्सिडी लेना इजी हो जाएगा। सो विल ट्राई टू कवर कहां पे आपको उनके बेनिफिट्स मिल सकते हैं इन द कमिंग स्लाइड, बट इट इज अगेन एडवाइजेबल एज अ प्रोफेशनल। अगर हम लोग क्लाइंट को कभी एडवाइस करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि आप बैंक लोन लीजिए, विच इज गुड फॉर अस ऑल्सो। हमारे लिए वहां पे भी हो सकता है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, और साथ में ही वुड रिमेन कंप्लाइंट। बैंक, आप तो उसको पुश कर ही रहे हो कि आपको इन्वेस्टमेंट जिस चीज के लिए लिया है उसी के लिए यूज करना है। साथ में बैंक का डिसबर्समेंट भी इज लिंक्ड विद, अगर आपने केपेक्स किया है, इफ यू आर यूजिंग दैट केपेक्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, प्रॉपर पर्पस, देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट। सो इट इज अ नॉन क्रेडिट लिंक, बट 2-3 कंडीशंस के साथ में उन्होंने इसको ऐसा बना दिया है कि आप क्रेडिट लिंक लेना ही पड़ेगा, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। अब ये थोड़ा सा स्लाइड है जो हम लोग रेड टेपिज्म का बात करते हैं, जो हम लोग ने, अब हम सीए के अंदर भी कई बार बोलते हैं हम लोग को कुछ लर्न करना है, अनलर्न करना है और फिर से रीलर्न करना है। तो ये दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। 2020 के अंदर एमएसएमई एक्ट के अंदर डेफिनेशन चेंज कर दिया था, जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ तक का एमएसएमई में कवर किया हुआ था। अगर आप 50 करोड़ तक का भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो यू विल बी कंसिडर्ड एज एमएसएमई एंड यू कैन गेट द बेनिफिट। बट इन पीएसआई, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी पॉलिसी के अंदर, till date they are following the old definition of MSMED Act 2006 वाला डेफिनेशन था, जहां पे 10 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट रहेगा तभी आप एमएसएमई में क्लासिफाई होगे, यू विल गेट द बेनिफिट। अगर आपने 10 करोड़ से ऊपर का क्रॉस किया, यू विल नॉट गेट द बेनिफिट। सो दे आर स्टिल फॉलोइंग। हम लोग कई बार बात करते हैं ऐसा क्यों, तो कई बार हम लोग को वहां से यही आंसर आता है, हम लोग तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के जीआर के बेसिस पे चलते हैं। जीआर जब तक हमारे पास में नहीं आएगा, वी विल गो विद द ओल्ड डेफिनेशन। हमारी स्कीम के अंदर वही लिखा हुआ था, बट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग, सिंस पिछले 4 साल में जीआर आ जाना चाहिए था, अभी तक आया नहीं, अब तो नई पॉलिसी आने का टाइम हो गया। वी आर एक्सपेक्टिंग नई पॉलिसी के अंदर दे वुड डेफिनेटली अडॉप्ट दिस न्यू डेफिनेशन, और उस केस में आपका प्लांट एंड मशीनरी में 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कवर हो जाएगा। बट उन्होंने फिर बीच में एक चीज किया था, सिंस उनके केस में एमएसएमई का डेफिनेशन 10 करोड़ तक का था प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट का, बट उन्होंने एक अच्छी चीज किया था, दे कवर्ड, अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट इन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी मिला के 50 करोड़ तक का भी होता है, जहां पे हो सकता है मशीनरी का 20-25 भी रहेगा, स्टिल वी विल कंसिडर यू एज ए एमएसएमई एंड वी विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ पीएसआई 2019, जो कि मैंने लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रोथ टैक्स ये अगर आपका 50 करोड़ तक का है तब भी वो आपको पीएसआई 2019 के अंदर बेनिफिट देंगे। की डेफिनेशन आई थिंक ये तो मैंने एकदम पॉलिसी से लिया है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ डिस्कशन करने का है नहीं। ये हम लोग इफेक्टिव स्टेप देख लेते हैं। पीएसआई 2019 में एलिजिबल होने के लिए हमारे क्लाइंट को, एमएसएमई क्लाइंट को क्या करना है सो दैट ही कैन गेट द बेनिफिट, उसमें से ये 4 इफेक्टिव स्टेप्स है। इट इज नॉट आइदर और इट इज एंड। आपको चारों चीजें, जब तक ये पीएसआई 2019 है, एप्लीकेबल है, उसके पहले कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने चारों कंप्लीट कर लिए तो आपको पीएसआई 2019 का बेनिफिट मिलेगा, विच इज फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कंपनी एलएलपी। आपका 1 अप्रैल 2019 के बाद का इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। अभी तक चल रहा है तो अगर किसी ने आज या कल भी इनकॉर्पोरेट किया, दैट वुड बी कवर्ड इन पीएसआई 2019। इफेक्टिव पोजेशन ऑफ लैंड, आपने जिस लैंड पे प्रोजेक्ट लगाना है, जिसके लिए सब्सिडी लेना है, उसका पोजेशन आपको 1 अप्रैल 2019 के बाद में से लेके आज की डेट तक के आपकी पोजेशन आ जाना चाहिए, देन ओनली यू विल बी क्लासिफाइड अंडर पीएसआई 2019 बेनिफिट्स। उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको करवा लेना है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट है एमपीसीबी, कंसेंट टू एस्टैब्लिश। आपको एमपीसीबी का कंसेंट टू एस्टैब्लिश ले लेना है बिफोर दिस पॉलिसी गेट्स ओवर एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2019 टू बिकम योर क्लाइंट एलिजिबल फॉर this incentive policy. Individual is not entitled. It is for all, proprietorship, partnership, सबके लिए. Constitution of work. So in that case, it is a constitution of a proprietorship firm. Firm means proprietorship firm also.
ये हमने शायद कवर कर लिया काफी बार। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर कंसिडर होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक दो इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस आर आल्सो पार्ट ऑफ, हम जब बैंक प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें भी इसको कैपिटलाइज कर देते हैं, सो दैट इज कवर्ड। और आपको इंसेंटिव सब्सिडी भी मिलता है, R&D एक्सपेंसेस भी मिलता है। खाली मैं आपको प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस का एक क्लासिकल एग्जांपल, जो कि प्रैक्टिकली सिंस अब 15 साल हो गए तो कुछ ना कुछ हर बार कुछ नई चीजें आती है, और आई ऑल्सो कीप लर्निंग। जब तक आता नहीं है तब तक आप बहुत डिटेल में जाते नहीं हो, सो दैट इज द ह्यूमन टेंडेंसी, हमारे लिए भी है। जब काम आएगा तो हम लोग, हाँ एक बेसिक पता रहेगा, पर जब काम आएगा तब हम लोग उसके और डिटेल में जाते हैं। तो जब तक शुरू में 6-7 साल तक प्री ऑपरेटिव का कुछ काम नहीं आया था या पता रिक्वायरमेंट नहीं आया था, आई डिड नॉट रेड। एट अ लेटर स्टेज अ क्लाइंट केम इन जिससे टर्म लोन लिया हुआ था, और आपका जो इंटरेस्ट लगता है टर्म लोन पे, वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड भी आपको इंटरेस्ट लगता है, जिसको लास्ट के अंदर कैपिटलाइज कर देता है। सो in PSI 2019, that interest during construction period which you capitalize, that is also a part of your project cost, और आप उसके ऊपर भी सब्सिडी ले सकते हैं। So my client, he took 60% subsidy on the interest cost which he paid during construction period also. So this is something, ये सब benefits है जो हम लोग additionally as a, चलो किसी क्लाइंट को पता भी रहेगा कि PSI 2019 का बेनिफिट, बट दीज आर द मोर डीपर एरियाज जहां पे हम लोग जाके उसके लिए वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकते हैं। एंड इफ वी आर अवेयर, वी कैन avail these kind of benefits for our clients. R&D expenses अगर करते हैं, that is also part of project cost. PSI कवरेज जो इनके थर्ड सेक्टर्स हैं, आई थिंक ये सब, सो खाली PSI का जो इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग करना है, इफ यू हैव प्रूवन दैट इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, आपको PSI 2019 का बेनिफिट मिलता है। फूड प्रोसेसिंग, लेदर प्रोसेसिंग, आपका टेक्सटाइल हो गया, स्टील हो गया, फार्मा हो गया, कोई भी सेक्टर में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, केमिकल हो गया, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ PSI 2019 अगर आपने महाराष्ट्र में वो यूनिट डाला है तो। इट इज कवरिंग एवरी सेक्टर, आप देख सकते हैं मैंने नाम भी लिखे हैं बहुत सारे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, थोड़ा सा एरिया वाइज। सो जैसे हम लोग ने बात किया, महाराष्ट्र को 7 जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया, A, B, C, D, D+, विदर्भ, मराठवाड़ा, नो इंडस्ट्रियल, और लाइक नंदुरबार। सो यू सी 30% से लेके 100% तक का। और मैं थोड़ा सा, जब हम लोग नीचे वाला लास्ट 100% का डिस्कशन करेंगे, आई विल गिव यू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल आल्सो, कैसे ये चीजें काम करती हैं। सो ए जोन, देयर इज नो बेनिफिट। जैसे हम लोग ने बात किया, अगर हम लोग बॉम्बे के पास में बैठे हैं तो वसई हो गया, तलोजा हो गया, अंबरनाथ हो गया, TT के इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ये सब एरियाज आपके डेवलप में आते हैं। जो पूना के पास में, उसका हम लोग एग्जांपल देते हैं, बात करते हैं, लाइक चाकन हो गया, वो पूरा ए जोन में है। सो ए जोन इज बेसिकली, इट इज ऑलरेडी डेवलप्ड। गवर्नमेंट आपको रोकती नहीं है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पर आपको इंसेंटिव या सब्सिडीज भी नहीं देंगी, आपको उसके लिए B, C, D+ जोन में जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप अंडर डेवलप्ड एरिया में जाओगे, यू विल गेट द बेनिफिट। पर एज वी डिस्कस्ड, अगर विमेन एंटरप्रेन्योर है तो आपने ए जोन में भी बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल या पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, आपको ए में मिल जाएगा। IT या IT से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको ए जोन के अंदर भी, सी जोन का बेनिफिट मिल जाएगा। सी जोन इज 40% बेनिफिट विच यू कैन गेट। सो दैट इज हाउ वी कैन प्लान द थिंग्स इफ समवन इज पुटिंग इन ए जोन इटसेल्फ। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू लास्ट में थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूं। एस्पिरेशनल एरिया लाइक नंदुरबार, कुछ 8 महीने पहले आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अपना स्टडी सर्कल ही है सूरत से, टेक्सटाइल, उनका टेक्सटाइल मार्केट स्टडी सर्कल है, वहां से लोन ही थे। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि आपको सब्सिडी के ऊपर एक यहाँ पे आके लेक्चर लेना है। तो मैंने उनको हम्बली बोला कि सर, मैं तो महाराष्ट्र में काम करता हूँ, गुजरात की पॉलिसी का पढ़ा है, कई बार एडवाइस करते हैं, पर प्रैक्टिकली मैं बहुत ज्यादा काम करता नहीं हूँ, तो मेरे लिए वहां पे आके बहुत ज्यादा मैं वैल्यूएडिशन कर नहीं पाऊंगा। सो इज नेक्स्ट लाइन वाज, सर गुजरात का तो हमको पता है, हमको महाराष्ट्र के बारे में जानना है। सो आई आस्क्ड, आपको गुजरात में बैठ के महाराष्ट्र के बारे में क्यों जानना है? सिंस आप, मतलब पीपल से दैट कि गुजरात इज प्रोएक्टिव इन ऑल द थिंग्स, आपके लिए अप्रूवल्स के लिए, या फिर समटाइम पीपल से दैट लैंड कॉस्ट के लिए भी, बट स्टिल ही इंसिस्टेड कि आप हमको आगे महाराष्ट्र के बारे में बताइए। देन मैंने थोड़ा सुना हुआ भी था, सो आई वाज अवेयर। They wanted to understand about the Maharashtra incentive policy. The reason being,
महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे एक डिस्ट्रिक्ट आता है विच इज इन महाराष्ट्र, नंदुरबार, और वहां पे एक नवापुरा करके तालुका है। इन PSI 2019 महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट डिस्ट्रिक्ट एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो ये लोग क्या करते हैं, हर पॉलिसी में एक या दो डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट करने के लिए उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं, और जहां पे आपको 100% इंसेंटिव देते हैं ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अब गुजरात वाले को जानने का, सो क्रक्स ऑफ द थिंग इज, उसको जानने का ये फायदा था, अगर वो लोग सूरत से उनके सबके यूनिट्स जो भी रहते हैं, प्रोसेसिंग हाउसेज रहते हैं, डाइंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, या फिर यार्न मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सब 1 से 1.5 घंटे की सिटी से दूरी पे तो रहते ही रहते हैं। वहां से अगर उन्होंने एडिशनली 1 घंटा और ट्रेवल किया, दे लैंड टू दिस एरिया विच इज नंदुरबार, नवापुरा। What they felt is उनको उसी के ऊपर अगर 20% इंसेंटिव गुजरात में मिल रहा था, 5 times more incentive they are getting in Maharashtra. So this was a lucrative thing which was forcing them to shift the units from गुजरात टू महाराष्ट्र। हम लोग उल्टा रिवर्सल कई बार सुनते हैं कि लोग महाराष्ट्र छोड़ के गुजरात में जा रहे हैं, बट देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे लोग गुजरात छोड़ के महाराष्ट्र में भी यूनिट्स लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, पिछले 5 साल के अंदर they started with Nandurbar और Nawapur area, they started with 1 MIDC। उनका एक MIDC के अंदर 80 यूनिट्स लग के 2 साल पहले कंप्लीट हो चुका था। दे डिड नॉट हैड द एडिशनल लैंड इन दैट एरिया। उन्होंने 2 साल, नेवर हैपेंड इन द लाइफ ऑफ MIDCs या महाराष्ट्र के अंदर कि उनको 3 या 4 साल में एक नया MIDC उस एरिया में डिक्लेयर करना पड़ा। दे डिक्लेयर द न्यू MIDC इन द नंदुरबार एरिया। अब वहां पे एडिशनल 2 MIDC है। आज की डेट में वहां पे टोटल मिला के MSME, लार्ज, सब मिला के टेक्सटाइल, सो दैट एरिया इज बेसिकली फॉर टेक्सटाइल। वहां पे कॉटन का अच्छा प्रोडक्शन है, एंड समहाउ जब गुजरात भी पास में, गुजरात इज ऑल्सो कॉटन बेल्ट, वहां पे आज की डेट में 120 से 130 यूनिट्स लग चुके हैं, एंड विच आर टेकिंग, एंड मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आर ऑफ द पीपल हु आर फ्रॉम द गुजरात में भी, वडोदरा से या फिर सूरत से। सो पीपल आर टेकिंग। बोलते हैं गुजरात में बाकी सब चीजें अच्छी हैं, नो डाउट। महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं है कि वीक है। जब खाली कंपैरिजन मिलता है तो पीपल थिंक दैट कि महाराष्ट्र में आपको थोड़े लेबर इश्यूज हो सकते हैं, बट फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, एंटरप्रेन्योर के लिए वही एक एडिशनल जो आपको एज रहता है वो यही है कि आपने कैसे वर्कर्स को मैनेज करना है, कैसे आपको लोकल लोगों को मैनेज करना है। अगर आपने कर लिया तभी आप एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। तो दैट इज द चैलेंज। आपने चैलेंज किया तो आपको प्रीमियम मिलेगा। सो दैट इज द प्रीमियम ऑफ कमिंग टू द एरियाज लाइक नंदुरबार। सो महाराष्ट्र इज क्रिएटेड दोज काइंड ऑफ पॉकेट जहां पे आप आइए, हम आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सबका 100% इंसेंटिव देते हैं। लोगों ने वहां पे 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स की है, 50-50 करोड़ की सब्सिडी ले रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 5-5 करोड़ की सब्सिडी उनको हर साल मिल रही है। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू नो द थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ द एरियाज कि कैसे आप बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपको एरियाज के अंदर। ऐसे बहुत सारे एरियाज है। विदर्भ आपका पूरा D+ जोन के अंदर है, वहां पे फूड प्रोसेसिंग का दाल मिल, राइस मिल वगैरह बहुत सारी उस एरियाज के अंदर, जितने भी वी हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स आल्सो फ्रॉम दैट एरिया। या फिर बॉम्बे के अंदर भी जो लोग रहते हैं उनके यूनिट्स वहां पे रहते हैं। सो कॉटन जिनिंग प्रेसिंग यूनिट्स वगैरह हैं। Everyone is taking 60 to 80% of subsidy benefits under PSI। वहां पे आप विदर्भ में जाके देखिए, सबको पता है PSI 2019 या जो भी स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, बिकॉज एवरीवन टेक्स बेनिफिट ऑफ दिस काइंड ऑफ इंसेंटिव्स। थोड़ा सा यहाँ पे माइट भी एक तो अवेयरनेस, एंड सेकेंड थिंग इज सबको लगता है कि ये जोन है, ये जोन में नहीं है। बट फ्रेंड्स, अपने बहुत सारे क्लाइंट्स रहेंगे, उनका आज लैंड कॉस्ट देखिए। आप वसई में लैंड लेने को जाइए। मैं आपको एक और क्लासिकल एग्जांपल देता हूं। मेरे पास में एक क्लाइंट आया, उसने फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालना था वसई के अंदर। अगेन मोटा मोटी 10 करोड़ के आसपास का उसका टारगेट था। बोले मेरे को 5 करोड़ के अंदर तो लैंड मिलेगा वसई के अंदर जहां पे उसको डालना है, और बाकी का मैं बिल्डिंग के ऊपर 2-1 करोड़ का खर्चा करूंगा, 3 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी पे खर्चा करूंगा। सो दैट वाज द objective of is to go for a food processing unit। मैंने because since that was my old client, और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसी टाइम पे, मैंने कहा आप यहाँ से अगर थोड़ा सा if you move 70-80 किलोमीटर आगे, would it make any difference? क्योंकि क्या होता है, आपको खाली इंसेंटिव पॉलिसी के ऊपर आप डिसीजन नहीं लेते हो, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो। आप रॉ मटेरियल मार्केट के कितना पास में है, फिनिश प्रोडक्ट के पास में कितना है, लेबर अवेलेबिलिटी कैसा है, पावर अवेलेबिलिटी कैसा है, एंड इंपॉर्टेंट इज लैंड का कॉस्ट, बिकॉज लैंड इज द मेजर कॉस्ट नाउ डेज जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट डालते हैं। तो उसने बोला कि वी कैन एक्सप्लोर, गिव मी सम ऑप्शंस, कहाँ पे अपन कर सकते हैं। सो आई आइडेंटिफाइड एंड गिव हिम, हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर दूर वाड़ा करके एरिया है।
वाड़ा इज इन, पहले वो थाने डिस्ट्रिक्ट में आता था, अभी इट इज इन पालघर एरिया। मैं खाली एक स्लाइड पे लेके चलता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पालघर डी प्लस वाड़ा। वाड़ा बॉम्बे के इतना पास होते हुए, और दूसरा जो मैं आपको वाधवान पोर्ट का बता दूं, वहां से वाधवान पोर्ट इज जस्ट 80 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस एरिया। वाड़ा एज ऑन डेट इज इन डी प्लस जोन एज पर PSI 2019, जहां पे आपको 60% कैपिटल सब्सिडी, आपने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, 6 करोड़ का आपको सब्सिडी मिलेगा। ओवर एंड अबाउट, फूड प्रोसेसिंग इज अ राइजिंग सेक्टर इन महाराष्ट्र, जहां पे वो आपको एडिशनल 20% सब्सिडी देते हैं। जो भी आपको उस एरिया में मिल रहा है उसमें आप 20 ऐड कर लीजिए, दैट सब्सिडी वी विल गिव। तो मेरा क्लाइंट था दैट वर इन फूड प्रोसेसिंग, उसने वसई में यूनिट डालना था जहां पे उसको 0 सब्सिडी मिलता था, उसको विमेन वगैरह में जाना नहीं था, मेल एंटरप्रेन्योर ही डालना था, उसको वहां पे 0 सब्सिडी मिलना था। मैंने एडवाइस किया कि अगर आप बाकी के आप फैक्टर्स देखिए, आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना बढ़ता है, सिंस उनके लिए जो फिनिश प्रोडक्ट मार्केट था दैट वाज मुंबई बेसिकली। सो उन्होंने सब एनालाइज करके देन व्हेन आई टोल्ड हिम, अगर आपने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, आपको इसके ऊपर 8 करोड़ का सब्सिडी मिलेगा। He took that decision 2 years back, and they put that unit in Wada instead of Vasai. So this is basically an example of आपने टाइमली उसको क्लाइंट को एडवाइस किया, बताया, उसने सारे प्रोज एंड कॉन्स की, मेरे लिए एडिशनल कॉस्ट कितना सका, बट सब्सिडी वाज समथिंग, जहां पे उसको 0 मिलना था 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में, वहां पे उसको 8 करोड़ का सब्सिडी he could get on that project, and they put up that unit in Wada. So that is the, बॉम्बे के आसपास में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, अगर आप उनको प्रॉपरली एडवाइस करें तो, इफ यू आर अवेयर ऑफ। तो मैं थोड़ा सा वापस पीछे आ जाता हूँ। सो ये हम लोग बात करते हैं ABCD प्लस विदर्भ, मराठवाड़ा और एस्पिरेशनल एरियाज लाइक नंदुरबार। कुछ एरियाज में बी और सी में 7 साल तक है, उसके बाद में आपको 10 साल तक। सो 7 years इज बेसिकली जो भी सब्सिडी मिला उसको डिवाइड बाई 7, एवरी ईयर यू विल गेट इट। और 50 डी और डी प्लस में जो भी आपको मिल रहा है उसका दैट इज डिवाइड बाई 10 ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। ये जो हम लोग ने अभी एग्जांपल में बात किया फूड प्रोसेसिंग, उसमें आपको 20% एडिशनल और 2 साल भी बढ़ जाते हैं, जहां पे 7 है वहां पे 9, जहां पे 10 है वहां पे 12। नाउ एरिया, सिंस हम लोग ने ये फर्स्ट स्लाइड देख लिया कि कौन सा ABCD में आता है, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कौन से एरियाज है जो ABCD में, आई हैव कवर्ड इन द कमिंग स्लाइड्स। ग्रेटर मुंबई जो हमारा मुंबई है दैट इज एंटायरली इन ए, पर जैसे हम लोग बार बार डिस्कशन किया, विमेन है, EV है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग है, यू कैन गेट विद प्रॉपर प्लानिंग इन एरिया आल्सो। थाने, कल्याण, उल्लासनगर, अंबरनाथ, भिवंडी, दीज ऑल आर आल्सो इन ए जोन। पर भिवंडी में देखिए मैंने ए में भी लिखा है और सी में भी है। सो भिवंडी में अपने मुंबई और पुणे में जैसे MMR और PMR का कंसेप्ट चलता है, मुंबई म्युनिसिपल रीजन एंड पुणे म्युनिसिपल रीजन। तो जो हम लोग मुंबई का बात करते हैं, MMR के बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट है, सो भिवंडी जो तालुका है उसमें कुछ विलेजेस हैं वो विद इन MMR है, और कुछ विलेजेस जो आउटसाइड MMR है। सो आउटसाइड MMR विलेजेस आर इन सी जोन विच आर अंडर डेवलप्ड। वहां पे किसी ने यूनिट डाला तो उसको सी जोन का बेनिफिट मिलेगा, बट विद इन MMR में डाला तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, मुरबाड इज अगेन बी जोन में जो हम लोग बात करते हैं 30% इंसेंटिव मिलता है। देयर आर लॉट ऑफ MSME पैकेजिंग यूनिट्स हैं, देन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत सारी मुरबाड में है। वहां पे भी 2 MIDCs है। पिछले 10 साल के अंदर महाराष्ट्र स्टेट हैज डेवलप्ड 2 MIDCs इन मुरबाड एरिया, विच इज अगेन 130-140 किलोमीटर है यहाँ से, बट इट इज एक्सेसिबल। पीपल पुट अप यूनिट इन दैट एरिया एंड दे गेट इंसेंटिव बेनिफिट्स। जो हम लोग अगेन मुंबई के आसपास का नासिक, अगेन नासिक इट्स सिटीज इन बी जोन, मतलब आपको मिनिमम 30% इंसेंटिव मिलेगा। फिर निफाड, सिन्नर, दिंडोरी, ये वाला इगतपुरी, वेले, जैसे जैसे आप आगे जाओगे डी प्लस बेनिफिट। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर हमारे बॉम्बे के आसपास में कौन से एरियाज है जहां पे हम लोग के या तो क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर वी कैन सजेस्ट टू गो इन दीज एरियाज। पालघर, अगेन वसई पालघर इज इन ए, बट दहानू इज इन बी। जो हम लोग ने बात किया वाधवान पोर्ट, इट इज कमिंग इन दहानू। अगर किसी ने दहानू में आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, माइट बी जब नया पॉलिसी आता है उसको वो लोग बी में रखते हैं या शिफ्ट कर देते हैं, वी डोंट नो, दैट न्यू पॉलिसी कम्स इन देन ओनली विल कम टू नो, बट एज ऑन डेट दहानू इज इन बी जोन, आपको 30% इंसेंटिव मिलेगा। देन जवार, मोखाड़ा, तलासरी, वाड़ा, विक्रमगढ़, जो वाड़ा का मैंने एग्जांपल दिया, दीज एरियाज आर इन डी प्लस जोन, आपको 60% इंसेंटिव मिलेगा। ये अगर आप स्लाइड देखेंगे यहाँ पे, डी प्लस के अंदर यू आर गेटिंग 60% इंसेंटिव।
पालघर, रायगढ़। अगेन फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे केमिकल महाराष्ट्र में अगेन कैसा कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे सपोज केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करना है, जहां पे एक्सटेंसिव आपका पोल्यूशन क्रिएट होता है, दे हैव क्रिएटेड द एरियाज, आप केमिकल यूनिट्स इन्हीं एरियाज में लगा सकते हो। सो महाड़ इज एन एरिया, कोंकण के अंदर आता है, यहाँ से थोड़ा सा दूर है रोहा, और उस रूट पे जब आप गोवा रोड पे जाते हो, इट इज ऑन दैट रूट। महाड़ इज ए केमिकल जोन। आप जितने भी लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, ओपस पेंट्स का जो हम लोग बात करते हैं आजकल, सुनते हैं आदित्य बिरला, उनका जो मेगा प्रोजेक्ट है दैट इज इन महाड़। लक्ष्मी इंडस्ट्रीज करके अगेन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग लिस्टेड एंटिटीज देयर, उनके वहां पे 2 यूनिट्स हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल, वहां पे बहुत सारे लार्ज और एमएसएमईज के यूनिट्स है। वी हैव द क्लाइंट्स आल्सो हु हैव यूनिट इन महाड़ एरिया व्हिच इज इन सी जोन, जहां पे आपको 40% कैपिटल इंसेंटिव मिलता है। एंड केमिकल वाले अपने जितने भी कोई क्लाइंट्स रहेंगे, दे ऑलवेज, उनको पता भी रहता है इस सब एरियाज का, दे ट्राई टू, क्योंकि बॉम्बे के पास में आप लगा नहीं सकते हो। दूसरा, लैंड कॉस्ट यहाँ पे बहुत हाई है, यहाँ से 1/5 रेट पे आपको लैंड इन सब एरियाज में मिल जाती है। सो एंड यू आर नॉट अलाउड टू पुट अप द यूनिट नियर टू रेसिडेंशियल एरियाज और मुंबई के जैसे एरियाज में। तो वी कैन सजेस्ट आवर क्लाइंट्स, अगर कोई केमिकल से रिलेटेड है तो इन दैट एरियाज। बाकी तो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग फूड प्रोसेसिंग, काजू, कैशो प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत सारे होते हैं, वो सब आपको रत्नागिरी सिंधुदुर्ग एरिया में मिलेंगे। लॉट ऑफ क्लाइंट्स हैव यूनिट्स इन दैट एरिया, जो कि D+ का बेनिफिट ले रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स, इंसेंटिव्स में क्या क्या मिलता है? सो दीज ऑल आर बेसिकली, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग कैसे क्लाइंट के साथ में इंगेज रह सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। जो हम लोग ने PSI का बात किया, तो आपको क्या फॉर्म में मिलती है। सो उसके 5 क्राइटेरियाज है। स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन परचेज ऑफ लैंड, SGST पेबल ऑन टोटल सेल्स, ये ग्रॉस की बात करता है, नेट की बात नहीं करता है। आपको अगर GST पे करना नहीं भी आ रहा है, स्टिल यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द PSI 2019, बिकॉज इट जस्ट टॉक्स अबाउट आपको सेल्स महाराष्ट्र में करना है, बिकॉज इट इज अ स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सो दे वुड लाइक टू प्रमोट सेल्स मोर इन महाराष्ट्र, जिससे उनको SGST जनरेट हो। इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन टर्म लोन, 5% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन टर्म लोन है। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ 1 रुपी to 2 रुपी पर यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जाम्पशन, यहाँ पे खाली इंपॉर्टेंट है स्टैम्प ड्यूटी एग्जाम्पशन के बारे में। अगेन देयर आर वेरी फ्यू स्टेट्स विच आर गिविंग स्टैम्प ड्यूटी एग्जाम्पशन। अब मैं आपको इंगेजमेंट का, अगेन हम लोग ने काफी सारी चीजें बात की जहां पे हम लोग क्लाइंट्स के लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एंड देन वी कैन प्रोफेशनली इंगेज विद देम। अगर आपके पास में कोई क्लाइंट सही टाइम पे आया है, MSME क्लाइंट आया है, जिस टाइम पे उसने लैंड खरीदना है, 1 करोड़ का लैंड अगर उसने खरीदना है, जस्ट गिविंग एग्जांपल, 5 लाख रुपए का महाराष्ट्र के अंदर स्टैम्प ड्यूटी लगता है। इफ यू आर पुटिंग अप दिस यूनिट इन, सपोज वाड़ा के अंदर आप यूनिट पुट कर रहे हो, वहां पे आपको स्टैम्प ड्यूटी एग्जाम्पशन भी मिलता है। 5 लाख रुपए का उस क्लाइंट को लैंड परचेज टाइम करने के टाइम पे ही स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करना है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड आप किस टाइम से क्लाइंट के साथ में इंगेज हो रहे हो, और 10 साल तक आपका उसके साथ में एसोसिएशन बना रहता है, क्योंकि उसको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए भी आपके साथ में इंगेज रहना है। उसके बाद 10 साल तक उसके क्लेम प्रोसेस करने के लिए भी हेज टू, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर द क्लेम्स, बहुत सारे होते हैं जिसमें CA के सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है। देन यू हैव टू लाइसेंस विद द डिपार्टमेंट ऑल्सो। सो दैट इज हाउ आपका 10 साल तक उनके साथ में एसोसिएशन बना रहता है। आपने क्लाइंट को राइट टाइम पे एडवाइस किया, जिस टाइम पे उसने प्लानिंग किया था, लैंड परचेज किया था, तब से आपने उसका बेनिफिट करवा के देना स्टार्ट किया, he will certainly remain with you as a professional, and with our experience I can tell, अगेन हम लोग बात करते हैं 10 साल तक तो उसको रहना ही है। 10 साल में अगर अच्छा क्लाइंट है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो 5-6 साल में तो एक और एक्सपेंशन कर डालेगा। एक्सपेंशन कर डाला तो फिर से आपका उसके साथ में एंगेजमेंट 10 साल का। सो इट इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विच यू डेवलप विद द क्लाइंट। एक बार आपने उसको EC ला के दिया, 3-4 साल का क्लेम प्रोसेस करके दिया, तो उसको जब एक्सपेंशन करेगा तो वो आपके पास नहीं रहेगा। व्हाई ही विल गो टू एनी अदर प्लेस व्हेन यू हैव गिवन हिम सो मच ऑफ इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ MSME के बारे में समझना, इंसेंटिव्स पॉलिसीज के बारे में समझना। दैट इज हाउ वी कैन बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। वी हैव क्लाइंट्स, उन्होंने पिछले 15 साल के अंदर 2-2, 3-3 एक्सपेंशन कर लिया, एंड दे आर स्टिल विद अस, एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप व्हिच वी डेवलप। कुछ हैं आपको एक्सपेंशन के ऊपर भी या 5% ऑफ बेनिफिट होता है। आई थिंक मैं इंपॉर्टेंट चीजें कवर करता हूं, क्योंकि PSI काफी टाइम ले लेता है, एंड आई थिंक वी आर लेफ्ट विद 5-10 मिनट्स। मनीष जी, तो
थोड़ा सा जितना कवर कर सकते हैं विल ट्राई टू कवर. आई ऑलवेज से दैट PSI इज समथिंग मैक्सिमम टाइम लेती है एंड वी ट्राई टू कवर PSI विच इज अ इंपॉर्टेंट पॉलिसी. बाकी पे मैं थोड़ा थोड़ा सा क्विकली आपको विल टेक अ ग्लांस, पर एक एक पॉलिसी को कवर करने में 1.5-2 घंटे का लेक्चर लगता है. सो माइट नॉट बी पॉसिबल टू कवर ऑल द स्कीम्स, बट जो इंपॉर्टेंट था वो हम लोग कवर करेंगे. एक्सपेंशन का हम लोग ने डिस्कशन कर ही लिया था कि अगर आप एक्सपेंशन करते हो तो भी आपको PSI में बेनिफिट मिल जाएगा. ये तीनों कंडीशंस हम लोग ने देख लिया था: एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कैपेसिटी एंड मैन पावर. इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज इसके अंदर बेसिकली दो रहती हैं. माइक्रो एंड स्मॉल के लिए इट इज DIC एंड मीडियम के लिए जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, जो कि इन्होंने 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स मिला के एक जोन बनाया हुआ है. सो इन महाराष्ट्र देयर आर टोटल 6 जोन्स आर देयर. नाउ बेसिक रिक्वायरमेंट टू क्लेम PSI, जो हम लोग ने बीच में डिस्कशन किया था. क्लाइंट कई बार बोलता है कि मेरे को बेनिफिट मिलता नहीं है. अब मैं आपको इसमें, जो कि प्रैक्टिकली हमारे साथ में भी कई बार हुआ, MSME क्लाइंट्स कैसे होते हैं, फूड प्रोसेसिंग वाले नॉर्मली मेरे पास में आते हैं, बोलते हैं सर हमने लैंड परचेज कर लिया और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया, सब्सिडी लेना है. मैंने कहा ओके. डॉक्यूमेंट्स जब मैं मंगाता हूं तो उनके पास में जो अप्रूवल आती है कंस्ट्रक्शन की, वो आती है ग्राम पंचायत की अप्रूवल. नाउ फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम इन महाराष्ट्र फ्रॉम लास्ट 20 years for any manufacturing activity, gram panchayat is not the appropriate authority to give the approval. आपको टाउन प्लानिंग की या फिर MIDC में लगा रहे हो. सो एक और चीज इंपॉर्टेंट, PSI आपको MIDC में भी मिलेगा या फिर आपने फ्री होल्ड आउटसाइड MIDC भी लगाया तो कहीं पे भी आप यूनिट लगाओ, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ PSI. ऐसा नहीं कि आपको खाली MIDC में मिलेगा. सो जब लोग आउटसाइड MIDC आते हैं तब वो विद इन MIDC है, तब तो आपका प्लान अप्रूवल ऑलरेडी MIDC से होना ही है. सो देयर इट इज नॉट एरिया ऑफ कंसर्न. बट जो लोग बाहर लगाते हैं फ्री होल्ड लैंड पे, तब आते हैं और हमारे पास में लेके आते हैं ग्राम पंचायत का अप्रूवल है. ग्राम पंचायत अप्रूवल इज नॉट द अथॉरिटी. आपको PSI में अगर अप्लाई करना है तो टाउन प्लानिंग का बिल्डिंग प्लान अप्रूव होना कंपलसरी है, MPCB कंसेंट टू एस्टैब्लिश कंपलसरी है, MSME रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तभी आपको मिलेगा. नाउ व्हेन क्लाइंट कम विद दैट काइंड ऑफ माइंडसेट कि हमको लेना ही नहीं है, वो सब हैसल्स हैं. अब हैसल्स आपको आज लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज आपने कमाना शुरू नहीं किया है, आज तो आपका ग्राम पंचायत अप्रूवल से काम चल जाएगा, छोटा यूनिट है. पर जब 3-4 साल में आपका यूनिट प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगा, बिकॉज वो भी अवेयर है कि आप पैसा आपकी पॉकेट से कब निकाल सकते हैं. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट. शुरू में 2-3 साल आपको परेशान नहीं करेगा, पर जब उनको लगेगा कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज दे ऑल्सो कीप अ वॉच इस एरिया में कहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है, क्या हो रहा है. सो जब 3-4 साल बाद में आप पैसा कमाना चालू कर देते हो, तब वो आपके पास में आएगा. आपका 4 साल का या आप यूनिट विदाउट अप्रूवल ऑफ टाउन प्लानिंग यू आर रनिंग. नाउ दिस इज द पेनल्टी, दिस इज द इंटरेस्ट. अब सब कुछ पे करो और आपको सब्सिडी का बेनिफिट भी नहीं मिला. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपने क्लाइंट को राइट टाइम पे राइट एडवाइस कर दिया कि आप टाउन प्लानिंग का अप्रूवल लेके काम स्टार्ट कीजिए, MPCB कंसेंट टू एस्टैब्लिश लेके ही काम स्टार्ट कीजिए. नाउ इन महाराष्ट्र MPCB कंसेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करो, आपको ऐसा नहीं है कि आप पॉल्यूशन इंडस्ट्री है तभी आपको MPCB लेना है. महाराष्ट्र में इन्होंने कैटेगरीज बना दी है. व्हाइट कैटेगरी है, ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है. तो अगर आपका नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री ऑल्सो है, यू टेक अ व्हाइट कैटेगरी रजिस्ट्रेशन, जो कि ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, आपको 2 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन भी आ जाता है. यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, ऑनलाइन प्रोसेस है. एंड फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, जब हम लोग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज का बात करते हैं, दीज आर द एरियाज ऑल्सो. आप सब्सिडीज के साथ में उनका MPCB का, अगेन सिंपल प्रोसेस है. हो सकता है कई बार हमको लगता है MPCB में हमारा क्या काम है, लेकिन आप जाके देखिए, आपने 1-2 काम किए तो MPCB अप्रूवल इज समथिंग विच यू कैन ऑल्सो डू. ऑनलाइन प्रोसेस है. जब आपको ग्रीन या ऑरेंज में रहता है, देन यू हैव टू गो टू द डिपार्टमेंट, उनसे थोड़ा डिस्कशन करना पड़ता है. बट स्टिल फैक्ट्री लाइसेंस अप्रूवल्स है, फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर, दैट इज आल्सो कैन बी डन बाय अस. सो with the subsidy we can do loan work for him, we can do MPCB approvals, we can do, so you can give a bouquet of services. साथ में GST का उसका काम करना है, इनकम टैक्स करना है. जब आप सब्सिडी का काम कर रहे हो, he will give you rest of other work also if you have good relationship with the client. So that is how, this practice can also add value to your other areas also. या फिर आप बाकी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में आपने उसको नया यूनिट डालना है, इनकम टैक्स का काम करते हैं, GST का काम करते हैं, आपने अगर MSME का भी प्रैक्टिस साथ में दिया, यू कैन गिव एडिशनल सर्विसेज टू द क्लाइंट. सो land should be NA, building plan has to be approved by town planning, Udyam registration, MPCB consent to establish, consent to operate, and project has to be approved by bank or CCOM. Process, I think. अब अगेन रोल ऑफ CA जो हमारे लिए, अगेन जो जिसके लिए हम लोग आज बात कर रहे हैं, वैसे तो सारी चीजें
प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर सीएस, बट थोड़ा सा हम लोग स्पेसिफिकली देख लेते हैं। एडवाइजरी सर्विसेज टू द क्लाइंट एक्सप्लेनिंग देम पॉलिसीज। फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू, खाली एग्जीक्यूशन के लिए नहीं है, वी हैव द क्लाइंट्स जो लार्ज मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए भी आते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, लिस्टेड कंपनी वाज देयर, दे गिव अस द 6 स्टेट्स। मैं बाकी के स्टेट्स में हो सकता है एग्जीक्यूशन का काम नहीं करता हूं, बट मेरे को गुजरात की पॉलिसी तो पता है, मेरे को एमपी की पॉलिसी पता है, मेरे को गोवा की पॉलिसी पता है। सो वी हैव डन लॉट ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज। उसके लिए हम लोग प्रोफेशनली एंगेज भी हुए हैं, जहां पे हम लोग ने उनको 5-5, 6-6 स्टेट्स का कंपेयर करके दिया है, विच इज द स्टेट which can give you maximum incentive subsidies. So that is the area of practice which we can create. Preparation of project report, term loan की या subsidy की या सब में आपको project report बनाना लगता है। Project report के लिए he will certainly come to the chartered accountant. Filing of various application for subsidies, filing of yearly claims, licensing department providing various certificates during obtaining EC. CA के certificates बहुत सारे लगते हैं EC के लिए भी, और जब उसको yearly claim लेना उस टाइम पे भी you need lot of chartered accountant services, and that is how हमारे engagement उनके साथ में long term का 7 साल 10 साल expansion किया तो 15-20 साल तक we can create a long term relationship. I think PSI हमने cover कर लिया है। We'll pause for maybe a couple of minutes. कुछ 1-2 questions है तो we can take, और फिर मैं quickly, if time permits, maybe 10 मिनट में तो 2-3 policies का मैं quickly I'll take. Yes sir. So cold storage के लिए PSI के अंदर पहले खाली आप कोल्ड स्टोरेज लगाते थे तो भी बेनिफिट था इन PSI 2019 but 2013, but in this policy they have specifically mentioned खाली आपने इंटीग्रेटेड कोल्ड स्टोरेज लगाया उसके लिए नहीं है, पर आपने प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है, सपोज फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके साथ में आपको हल्दी प्रोसेसिंग है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हल्दी को आपको स्टोरेज करना है कोल्ड स्टोरेज, तो आपने इंटीग्रेटेड कोल्ड स्टोरेज लगाया, देन यू विल गेट द बेनिफिट अंडर पीएसआई। खाली कोल्ड स्टोरेज के लिए आपको पीएसआई के अंदर बेनिफिट नहीं है, बट देयर आर अदर पॉलिसीज जहां पे आपको कोल्ड स्टोरेज के लिए मिल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एनएचबी एनएचएम की सब्सिडी है, देयर यू कैन गेट द बेनिफिट, नॉट इन अंडर पीएसआई। यस सर। In IBC also, if the client is an MSME sector, promoter can also submit a resolution plan. But otherwise, the case of the IBC, the promoters are not intended to submit a resolution plan based on district of MSME. It is not a question, it's just an observation. Government IBC also promoting the MSME. Okay. Can you tell something about the PLI scheme? PLI पे आई थिंक मैंने कुछ स्लाइड्स रखी तो है लास्ट में। But that is state driven or state and central. इट इज अ सेंट्रल ड्रिवन, सब कुछ प्रोसेसिंग सेंट्रल से होता है, आपको कोई उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं है। ओनली द थिंग इज PLI इज बेसिकली फॉर लार्ज और मेगा प्रोजेक्ट्स, बट अब वहां पे कैसा है, उन्होंने हर मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपका कंप्यूटर, उसके बाद में आपका जितना भी आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आज के दिन में इंडिया में हो रहा है, या फिर हार्ड सर्वर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, दैट ऑल इज कवर्ड अंडर IT। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर आपका PLI टेक्सटाइल वाला आता है, सो दे हैव कवर्ड एज पर द सेक्टर। MSMEs के लिए कुछ सेक्टर्स में उन्होंने रखा हुआ है, बट नॉट इन, जैसे हम लोग स्टील का बात करते हैं, स्टील के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 500 करोड़ रुपीस, तो वहां पे आपका MSME नहीं आएगा, बट फूड प्रोसेसिंग में मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 20 करोड़। टेक्निकल टेक्सटाइल्स में अगेन दे हैव मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 करोड़, सो वहां पे आपको MSMEs भी कवर हो सकते हैं, बट प्रीडोमिनेंटली मेरे पास में डेटा है कुछ 700-750 एप्लीकेशंस आज की डेट में PLI के अंडर आई है, सब 14 स्कीम्स में मिला के, उसमें से 150 एप्लीकेशंस के आसपास MSMEs की है, बाकी की 550-600 एप्लीकेशंस वो लार्ज और मेगा प्रोजेक्ट्स की है, सो दैट इज बेसिकली फॉर लार्ज एंड मेगा प्रोजेक्ट्स। This CGT SME other schemes, is there any restriction that there should not be any foreign shareholding? Is there anything? So I just wanted to know. Or पूरा Indian होना चाहिए या foreign हो सकता है? In CGT MSE there is no restriction of it has to be MSME. Yeah, that is fine. बस Restriction in terms there is no restriction, और PLI के अंदर भी कोई restriction नहीं है। We have the clients who are foreign clients, इंडिया में जैसे उनके आपको as per I think FDA के थ्रू आपको डायरेक्टर या one share you have to give to nominal. Yes, but still you can get the benefit of PSI. केमिकल में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो कि महाड़ में, जैसे मैंने यूनिट बताया, दे आर फॉरेन एंटिटीज बट दे आर टेकिंग बेनिफिट। दे वांट, आपको स्टेट में यूनिट डालना है, आपको स्टेट को प्रमोट करना है, सेल्स यहाँ पे कीजिए, विल गिव यू द बेनिफिट। सो उसमें उन्होंने व्हाट दे हैव डन इज, आप
एग्जाम्पल ले 10 करोड़ का सब्सिडी मिलना है आपको, 10 साल में मिलना है, हर साल 1 करोड़ रुपया मिलेगा। सो इट इज अ कैपिटल सब्सिडी, डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट से आएगा, बट उन्होंने 4-5 चीजों से उसको लिंक कर दिया है जस्ट टू सी दैट आप, इट इज नॉट जीएसटी रिफंड, इट इज नॉट इंटरेस्ट रिफंड, इट इज नॉट इलेक्ट्रिसिटी। आप अगर एक स्लाइड पे देखेंगे, आई जस्ट टेक, सिंस दिस इज अ गुड क्वेश्चन आई थिंक, बास्केट जो उन्होंने बनाया है, स्टैम्प ड्यूटी, एसजीएसटी, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एंड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। तो एक साल में अगर आपका 1 करोड़ का एलिजिबिलिटी बन रहा है, तो ये पांचों चीजें मिला के आपको 1 करोड़ का उनको दिखाना है कि आपने ग्रॉस एसजीएसटी, अब महाराष्ट्र में वो लोग बात करते हैं ग्रॉस का, आपके पास में इनपुट रखा हुआ था रॉ मटेरियल का, या फिर आपने मशीनरी जब परचेज किया था तो आपके पास में हो सकता है 2-3 साल तक तो पेमेंट करना भी नहीं आएगा। पर आपने अगर महाराष्ट्र में सेल्स किया है, महाराष्ट्र की सेल्स पे 18% आपका जीएसटी लगता है टोटल, उसमें से एसजीएसटी इज 9%। आपका अगर वो पोर्शन 1 करोड़ रुपया हो रहा है, दैट 9%, you can get that 1 crore rupees refund. It is not a GST refund, it is just a method of calculation so that they want to ensure that your unit, आप GST कब पे करोगे, जब आपका यूनिट रनिंग रहेगा। उनका ऑब्जेक्टिव है आपको 10 साल तक इस यूनिट को चलाना है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ आप कब पे करोगे, जब आपका यूनिट चलेगा। बैंक को इंटरेस्ट आप कब पे करोगे, जब आपका यूनिट चलेगा। सो दैट इज व्हाई दे हैव लिंक्ड। और उन्होंने एक आइटम नहीं रखा है, अगर सपोज किसी ने बैंक इंटरेस्ट, बैंक लोन नहीं भी लिया है, तो आप जीएसटी में कवर करो। किसी का हो सकता है जीएसटी में 10% ही सेल्स विद इन महाराष्ट्र है, 90% आउटसाइड महाराष्ट्र है, तो उसका बास्केट 1 करोड़ का बन नहीं रहा है खाली जीएसटी से, यू टेक बेनिफिट ऑफ बैंक इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, सो दैट इज हाउ यू कैन टेक। नो, सो वहां पे ये तो अपन ने एमएसएमई का बात किया, वैसे ही लार्ज और मेगा के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं, और मैंने वो जस्ट एग्जांपल दिया कि वहां पे केमिकल के बहुत सारे यूनिट्स हैं, बट दे आर टेकिंग बेनिफिट इन लार्ज यूनिट। सेम पीएसआई के अंदर ही, जैसे हम लोग ने एमएसएमई पॉलिसी की बात किया, वैसे ही मेगा और लार्ज प्रोजेक्ट के लिए भी दे हैव द इंसेंटिव पॉलिसीज। Any other question? सो एप्लीकेशन हैज टू बी, स्टैम्प ड्यूटी के लिए आपको जब लैंड परचेज करना है उसके पहले करना है, क्योंकि आप स्टैम्प ड्यूटी के अंदर इट इज एन एग्जेम्पशन। एक बार आपने लैंड खरीद लिया, स्टैम्प ड्यूटी पे कर लिया, देन यू कैन नॉट क्लेम द रिफंड। तो आपको स्टैम्प ड्यूटी के लिए अगर जाना है तो आपको लैंड खरीदने से पहले अप्लाई करना है। 15 से 20 दिन में आपको उसका अप्रूवल आ जाता है। प्रैक्टिकली वी हैव डन फॉर हंड्रेड्स ऑफ आवर क्लाइंट्स। और फिर आप लैंड परचेज करते हो तो आप उसका एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट साथ में लगा दो। यू जस्ट नीड टू पे दैट 30,000 रजिस्ट्रेशन फीस, नो स्टैम्प ड्यूटी। पीएसआई का बेनिफिट लेने के लिए, पीएसआई का बेनिफिट लेने के लिए आपको इन प्रिंसिपल जिस टाइम पे आप यूनिट लगा रहे हो, यू जस्ट हैव टू मेक द एप्लीकेशन वंस यू हैव डन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, पोजीशन ऑफ द लैंड एंड एमपीसीबी कंसेंट टू एस्टैब्लिश। बट फाइनल एप्लीकेशन इज विद इन 1 month ऑफ द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। जिस दिन से आपने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया उसके 1 महीने में आपको अप्लाई करना कंपल्सरी है। सो पीएसआई के अंदर एक अच्छा चीज है, कर्टेलमेंट है। उन्होंने ना नहीं बोला है, आप 1 साल बाद में भी आपको याद आया, यू कैन कम, यू कैन टेक द बेनिफिट, पर प्रोपोर्शनेटली आपका जितने मंथ्स आपको सपोज 10 साल में मिलने वाला था, आप 1 साल लेट आए हो तो 12 महीने का आपका उसमें कर्टेलमेंट हो जाएगा, बट स्टिल दे विल गिव द बेनिफिट। सर इन टर्म्स ऑफ आई एम नॉट एबल टू हियर। Sir, petrol pump are not a manufacturing activity, so that is not considered. I think we will stop with the questions. If you have Yes. just any, तो मैं we will have a refresher course also, since looking at the interest of the members, we will arrange for one refresher course also. आई ऑलवेज से पीएसआई इंपॉर्टेंट था, हम लोग ने आई थिंक ये 1.5-2 घंटे में कवर कर लिया है। सो विच वाज द इम्पोर्टेंट पॉलिसी, बाकी का तो प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, तो उसमें आई हैव कवर्ड लॉट ऑफ सीएम फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है, जहां पे आपको 50 लाख तक का इंसेंटिव है फॉर ऑल दी सेक्टर्स, स्पाइस, फ्लोर, केचप, दाल मिल वगैरह का। Then Maharashtra state textile policy is there for all the sectors, 5F उनका है। एक पॉलिसी के लिए 1-1.5 घंटा कम पड़ेगा। So I just still for the benefit of members I have tried to cover in the presentation. आप बाद में भी कभी देखना चाहे तो you can cover. State government subsidies, CMEGP, National Agri Infra Fund Scheme, नेशनल सब्सिडी फॉर कोल्ड स्टोरेज, जो सर आप बात कर रहे थे, NHB, NHM के अंडर कोल्ड स्टोरेज के लिए देयर इज अ सब्सिडी।
PM Kisan Sampada Yojana for food processing, these are of central government. अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम्स ये सारी इसमें मैंने कवर किए हैं। PLI का जो हम लोग बात कर रहे थे सर, बहुत ही मुश्किल है 1.5 घंटे में कवर करना, बट इफ मैडम अलाउड विल सर्टेनली ट्राई टू, दोबारा आप लोग से मिलने का मौका मिलेगा और हम लोग PLI वगैरह पे भी शायद विल ट्राई टू। I think we just got a teaser. Main course अभी बाकी है। तो ये सब मैंने PLI वगैरह पे कवर किया है। सक्सेस स्टोरीज, अपॉर्चुनिटीज फॉर CAs हम लोग कैसे कैसे PLI के अंदर भी कर सकते हैं। एंड वी हैव डन अगेन एज अ पर्सनल आवर प्रैक्टिस, वी हैव असिस्टेड लॉट ऑफ क्लाइंट्स इन गेटिंग PLIs आल्सो। MSMEs में जैसे एक LED मैन्युफैक्चरिंग के लिए आया था, तो वहां पे इट वाज एलिजिबल फॉर MSMEs आल्सो, वी असिस्टेड आवर क्लाइंट एंड दे गॉट द बेनिफिट अंडर PLI। बैंक फंडिंग का हम लोग ने बात किया, CGTMS स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स हैं, देन PSU बैंक्स के SIDBI की वी हैव कवर्ड, कुछ चीजें हमने शायद डिस्कशन में कवर भी कर ली है। यू हैव नॉट मिस द एंटायर थिंग, बट हाँ PSI जो था इंपॉर्टेंट था, दैट वी हैव ट्राई टू कवर। अदर प्रैक्टिस एरियाज, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, और जैसे मैंने बताया MPCB के लिए भी सब्सिडीज का काम करते हुए ये सब एरियाज भी है जहां पे हम लोग क्लाइंट को वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। वी प्रोफेशनली चार्ज, मतलब वी आर डूइंग, हमारे पास में जब क्लाइंट एक चीज के लिए आता है तो ये सब चीजें भी उसको करवानी पड़ती है। एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग यू services also, MPCB, trademark, factory license, ISO, startup registration, उद्यम, advisory in PLI, नेबरिंग स्टेट्स। अब जैसे व्हाट आई से इज एडवाइजरी का काम हम लोग नेबरिंग स्टेट का भी कर सकते हैं, बट फॉर एग्जीक्यूशन यू नीड अ लोकल कनेक्ट, लोकलाइजिंग, और कई बार लैंग्वेज का भी बैरियर आ जाता है। लाइक अगर आप तमिलनाडु वगैरह में जाएंगे तो वहां पे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, सो वी हैव ए कोलैबोरेशन। आज उनके पास में गुजरात में समवन इज प्रैक्टिसिंग, ही गेट्स द वर्क ऑफ महाराष्ट्र, ही कैन गिव दैट वर्क टू अस। महाराष्ट्र में अगर कोई गुजरात का रहा है, वी कैन यू नो कोलैबोरेट एंड इंक्रीज आवर प्रैक्टिस। आगे तो बहुत सारे हैं, जैम पोर्टल है, सो आई थिंक ये सब तो मैं भी स्किप करूंगा। ट्रेड्स पोर्टल, कुछ चीजें फिर भी हम लोग ने, वी हैव यू नो MSME समाधान, MSME is in the 43BH, so that is the thing। एक खाली I would like to we have created a group जहां पे MSME से रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स होते हैं, नई पॉलिसीज आती है, नई इंसेंटिव स्कीम्स आती हैं, या फिर उनमें भी कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं, वी हैव क्रिएटेड अ ग्रुप। तो आप इफ यू विश आप लोग ये QR कोड से ज्वाइन भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में भी दिया हुआ है। एंड वी रेगुलरली, इट इज यहाँ पे कोई स्पैमिंग नहीं होती है, खाली जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू MSMEs, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसीज आ रही है, कुछ अपडेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ आ रही है, तो वी ट्राई टू अपडेट थ्रू दिस ग्रुप। सो दिस इज समथिंग you might like to join। Thanks for the patient listening। I think नाश्ते के लिए सबको तो भूख लग गई होगी। हमारी टाइम है, and then next speaker also has Oh, arrived. so sorry। Yeah. So to propose a common vote of thanks, I'd like our deputy convener, C.A. Raju. Good morning all. On behalf of everyone present here, I extend my heartful gratitude to CA Sachin Pulshan for taking the time to conduct this enlightening seminar on the opportunity for chartered accountant arising from various subsidies and incentives to MSMEs. Sir, your detailed insights into the evolving MSME sectors and the government incentive it is receiving जो न केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह हम सभी के लिए आगे की राह भी स्पष्ट करता है। Sir, your expertise and practical approach have inspired us to explore the opportunity. We truly appreciate the way you simplified complex concepts and highlighted actionable steps that we as professionals can take the support MSME while simultaneously enhancing our own professional growth. We request all of you, please give a lot of applause. Thank you. There is a short break for 15 minutes. Our next There. speaker also, there's a small announcement. Somebody has mistakenly taken some a bite keys
of some other member. Yeah, it must be by mistake.